guys, this is Ramita here, and you're listening to the Brown Girl Rants. I hope you all are having a great Wednesday or whatever day you're listening to it. I hope the day is going really, really, really well. But if it's not, then I hope that this podcast makes it a slightly better day for you. My day was a bit sad. I really got anxious today. I don't know why. I know why, like, and I can't explain. Maybe I'll explain after 2 3 episodes. Like, in filhal I can't. Like, and I really got a sudden wave of anxiety today, or it was not going away, but then it rained, और it rained for हालांकि forecast भी नहीं थी. मैं हमेशा forecast देखती हूँ कि कब बारिश होनी, क्योंकि आई हैव टू रिकॉर्ड, और forecast नहीं थी बारिश की. और मैं अपने भाई को कह रही हूँ कि आई वंडर अब कब नेक्स्ट रेन बारिश होगी, और ही वाज लाइक अब नहीं होनी बेटा, भूल जाओ. तो मैंने कहा अच्छा मुझे गर्मी में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि आई रिकॉर्ड माई स्टोर रूम. लेकिन अलमिया को पता था कि मैंने आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है, तो बारिश हो गई. तो थैंक यू सो मच अलमिया. लेकिन जो है, इट रेन्ड एंड इट रियली काम्ड मी डाउन. एक तो जब बारिश हो रही थी तो देयर वाज नो वन प्रेजेंट इन माय होम. सारे बाहर गए हुए थे. इट वाज जस्ट मी एंड माय सिस्टर एंड वी रियली एंजॉयड द रेन. we do have the privilege we do have the privilege to enjoy rain more now that we are living on 6th floor. It's so beautiful. जब भी ऐसा मौसम होता है और मैं बालकनी में जाती हूँ, it's so beautiful. और मुझे लगता है सारे जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, which you are, if you are not, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स एट द ब्राउन गर्ल रैंट्स. लेकिन जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है वो थक गया है मेरी बालकनी की एक ही पिक्चर देख देख के. लेकिन इट्स सो ब्यूटीफुल, आई कुड नॉट गेट ओवर. और स्पेशली जब बारिश होती है तब तो मुझे बहुत मज़ा आता है, एंड इट्स सो रिलैक्सिंग, सो कार्मिंग. और आई लव बीइंग ऑन द 6th फ्लोर. आई रियली रियली लव. जब हम यहाँ पे ले भी रहे थे अपार्टमेंट, तो दे वर थिंकिंग कि हम 4th पे ले लें या 5th पे ले लें. आई वाज लाइक नो, अगर अपार्टमेंट लेना है तो इट शुड बी अप देयर, एंड इट्स लाइक द सेकंड लास्ट फ्लोर, इससे ऊपर 7th फ्लोर है. तो आई एम फाइन विद दैट, आई एम फाइन विद 6th फ्लोर. लेकिन इट्स सो enjoyable to be a bit to be up there. For some reason I have always lived on I have never lived on ground floor. ठीक है, I have always lived on first floor जब मैं वैसे घर में रहती थी, and now I am living on the 6th floor. तो I think कि अब मैं कभी ग्राउंड फ्लोर पे रह भी नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी रही नहीं हूँ, which is very मतलब weird कि I have never lived on ground floor. लेकिन खैर, द रेन वॉज सो ब्यूटिफुल, और आई लेट माई सेल्फ be wet in the rain, and I was speaking about the things that make me content in life. I made a new Instagram post last weekend जिसमें मैं I was explaining the things that make me content, और फिर I explained all of those things in my story. So if you are not following me on Instagram, go follow it. I am really trying to hit 1K on my Instagram, so please help me out. लेकिन I was explaining that in my stories ke you should fall in love with the little things, and it could be as little as raining. And I think romanticizing rain is the best thing someone can do in their life, क्योंकि फिर उनको इतनी importance feel होती है rain की, and it makes you so much happy, especially rain in summer. तो very excited for monsoon. I hope कि अच्छी monsoon हो, और it's enjoyable and it doesn't cause destruction for anyone in this country or worldwide. Moving on, I am very excited for today's topic. It's about post graduation depression. And my friend, shout out to Sadia. If you're listening to it, shout out. She is very excited to listen to it too, and she was really like hyped for it. Or she gave me, I asked in my group कि I am making a podcast, so if किसी ने कोई देना है, if someone has anything to say, to please let me know. I'll read it out, and I'll read that out in the end. So she was like, I can make a whole show on this, so I would love to have her someday, and we can like have a chit chat about it. Like, and shout out to her, she was really hyped about it, and I hope it's an enjoyable episode for you. I hope you listen to it thoroughly. बीच में ना छोड़ दो. If there's someone new listening to this episode, because I think this episode would be more helpful for the people who know me in real life, somehow have some connection with me, even अगर वो social media का भी connection है, क्योंकि I know a lot of people that are graduating that are not my online friends.
maybe there might be some online friends too. Matlab, maybe this episode blows up and everyone who is graduating is coming and checking this episode out क्योंकि it's very helpful. I hope it does. लेकिन if you already, मुझे लगता है कि I slightly have an idea कि क्योंकि मेरी पिछली episode a lot of new people listened to it and they uh, came up to me and DM'd me and asked me कि हम फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं या मैंने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो मैं क्या करूँ, एंड आई फील सो गुड कि ओ माय गॉड कि थैंक यू फॉर आस्किंग मी क्योंकि आई हैव अ लॉट टू से and I would try to help you out so that you are not stressing out क्योंकि I did all of this myself and I don't want someone to not have anyone to advise them. ठीक है, और इस वजह से व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग पिछले साल तो आई वाज सो नर्वस, मी इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स. हमारे एक तो हमारे सीनियर से इतना कनेक्शन नहीं था क्योंकि बीच में कोविड आ गया 2 साल का, तो वी वर नॉट एबल टू मेक दैट कनेक्शन विद आवर सीनियर्स. और जब हमारी जिनसे था भी वो हमें यही कहते थे कि बस अभी जो मज़ा करना है कर लो, उसके बाद कोई मज़ा नहीं है, और इस वजह से हम डरे हुए थे, कांपे हुए थे. और इस मतलब पिछले साल इस टाइम पे वी वर वेरी नर्वस टू गेट आउट एंड वी डिड नॉट वांट टू. हम कहते थे बस कुछ हो जाए, हम बस यही रहे यूनिवर्सिटी में. और इतने हम पागल हो गए थे, हम कहते थे कि बस उड़ जाते हैं कोर्स में लेकिन यूनिवर्सिटी रहे, विच ऑब्वियसली डिडंट हैपन, थैंक गॉड. लेकिन वी वर वेरी नर्वस टू गेट आउट. और देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स और जो कि आई विल एक्सप्लेन बाद में कि क्या क्या हमारे जेन में था. और तो आई डोंट वांट एनीवन हु इज ग्रेजुएटिंग टू हैव द सेम नर्वसनेस. आई रियली वांट टू टेल देम कि इट्स गोना बी फाइन एंड आई होप कि आई कैन रिलीज सम स्ट्रेस ऑफ योर्स क्योंकि इट्स वेरी ओवरवेलमिंग obviously. But I hope this you enjoy this episode. Make sure you are subscribing to the podcast on whatever platform you're listening to it. Secondly, go follow my Instagram and my Twitter account. Okay, cool. We'll take a short break and come back. So, okay, let's start from university, being in university, and why people are so nervous to get out. मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी इज़ रियली एक्चुअली द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी में जब आप होते हो, कुछ लोग होते हैं, मैं तो जब यूनिवर्सिटी में थी आई न्यू कि आई एम लिविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. लेकिन जब लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं तो दे डोंट एक्नॉलेज इट. वो कहते हैं यार जल्दी ख़त्म हो, क्या मुसीबत है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू एन एंड तो दे रियली मिस दैट प्लेस अ लॉट. और जब ख़त्म, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो उस वक्त उनको नहीं पसंद थी यूनिवर्सिटी, क्या जल्दी ख़त्म हो, आई वॉन्ट फील एनीथिंग. लेकिन जब ख़त्म होने पे आ रही थी तो दे वर और आर अ बिट इमोशनल टू. So I think it's truly one of the best whatever course you're doing unless you're not a medical student. Maybe medical student, I don't know. मेरा इतना interaction नहीं. Maybe आप medical mid school भी जब छोड़ रहे हो तो आपको दुख होता होगा. लेकिन I think you're very sad क्योंकि obviously university is the best time. आप स्कूल और कॉलेज में यू आर कॉन्स्टेंटली स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, फॉर 6 आवर्स, नॉट 8 आवर्स लेकिन 6 आवर्स, 7 आवर, 4 आवर. बीच में एक ब्रेक है 15 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की. यूनिवर्सिटी में यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. मैं यूनिवर्सिटी में थी तो बेसिकली हम वी हैड 2 लेक्चर्स एक दिन में या 3, तो दैट्स 3 to 4.5 hours ऑफ स्टडी. और बाकी 6 घंटे हम फारिग थे. तो दैट वॉज द टाइम आई वॉज स्पेंडिंग विद माई फ्रेंड्स. सुबह हम आते थे 8:30 बजे और शाम को जाते थे 5:30 बजे आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर. सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में होती थी एक 2:30 की बस, उसमें हम जाते थे. लेकिन उसके बाद से जो है वो हम 5:30 जाते थे. तो दैट्स लाइक 9 आवर्स जिसमें से सिर्फ 3 या 4.5 आवर्स हम पढ़ रहे हैं. Rarely it's 4.5, mostly 3 hours. So बाकी 6 hours we are spending in university and mostly not studying और कभी बाहर जा रहे हैं, कभी ये करें और करें. तो that place turns out a comfort place to you. Obviously you're meeting your friend every single day. You're having fun with them. आप उनके साथ बाहर जा रहे हो. एंड इवन दो घर पे सबको लग रहा है कि ओ ये पढ़ने जा रहे हैं, और घर पे भी ज़रा इज्जत है कि वो ये तो पढ़ के आया, थका हुआ होगा, थकी भी होगी, ये रेस्ट कर ले, ये कर ले. लेकिन वहाँ आप only you know how much you're enjoying in university. Even if you are just sitting with your friends at cafeteria or any. अब मेरे ना जहन में अपनी यूनिवर्सिटी के सारे स्पॉट्स याद आ रहे हैं जहाँ जहाँ मैं बैठा करती थी. लेकिन इवन इफ़ यू आर सिटिंग इन अ खाली क्लासरूम और कैफेटेरिया और किसी कहीं भी कैंपस में, तो
with friends, तो even that after realizing would be so worth it, क्योंकि now you have to make plans, you have to spend days planning to meet your friends. अब आपको तो, और तब you have an access and privilege to meet your friends every single day and have fun with them every single day. तो obviously it's very sad, और मुझे, मेरे लिए यूनिवर्सिटी वाज माई हैप्पी प्लेस. आई वुड गो, आई वुड हैव सो मच फन. मेरा जिस दिन मूड खराब भी होता था मैं जाती थी, तो it would just make me so much happy getting to interact with people that are not maybe in my group and not in my class, लेकिन उनसे मिलना और वो सब कुछ करना. तो आई थिंक यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी फन प्लेस. बेशक आप यू हेट योर डिग्री, फिर भी आई थिंक इट्स अ वेरी फन प्लेस, और it's very enjoyable. If you, I hope it was for you too. Or obviously it's very matlab mindless, it's not very रिस्ट्रिक्टिंग कि ये नहीं कर सकते. जैसे स्कूल कॉलेज में होता है बहुत से रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं. यूनिवर्सिटी इज मोर फन, और वहाँ पे देयर इज समथिंग हैपनिंग. कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. स्टूडेंट्स वीक होता है, इवेंट्स होते हैं, सोसाइटीज़ बनी होती हैं. तो आई थिंक, और आप बाहर जा सकते हो यूनिवर्सिटी से, आप आउटिंग कर सकते हो जब ऐसा मौसम हो जैसा आज था, और यू आर इन योर कैंपस, तो यू हैव सो मच फन. मुझे अभी भी याद है जब भी हमारी यूनिवर्सिटी में बारिश होती थी, एंड इतनी बारिश होती थी कि पूरी सड़कें जो हैं वो पानी से भर जाती थी. तो इट वुड बी सो मच फन. तो इस वजह से आई थिंक यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी फन एंड हैप्पी प्लेस ऑब्वियसली. और स्कूल और कॉलेज के बाद जो 4 साल यूनिवर्सिटी के होते हैं, जिसमें it's less study and more enjoyment. Obviously you do study or stressful time भी होता है, but there's a good amount of enjoyment for you in university too, and fun too. Or if someone who is not from my university but have seen me on Instagram or have any sort of friendship with me would know कि I really enjoyed my university life. मुझे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त कहती थी कि रवि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की लाइफ मुझे एक मूवी लगती है, लाइक अ नेटफ्लिक्स हाई स्कूल मूवी फुल ऑफ ड्रामा और ये सब कुछ. आई थिंक कि वो मुझे ऐसा, अच्छा, गोइंग इन यूनिवर्सिटी मुझे नहीं, मुझे लगता था कि ओ ऑल दोज हाई स्कूल बेस्ड और कॉलेज बेस्ड जो भी सीरीज होती हैं वो सिर्फ वहीं तक होती हैं. रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, रियल लाइफ में सब कुछ होता है. तो आई थिंक के it's very fun, it's very enjoyable, or it's fun. So I think I understand ke why would you get so emotionally attached to your university, because I was too. Obviously you are going there to study, लेकिन actually you're enjoying that whole thing thoroughly. Even if you're loving what you're studying, तो आपको अपनी क्लास में बैठ के भी enjoy कर रहे हो. तो आई अंडरस्टैंड वाई यूनिवर्सिटी इज दिस मच फन. सेकेंडली, आप जब से पैदा हुए हो, उसके बाद से जब से आपने होश संभाले हैं बेसिकली, तो आपने अपने आप को एज ए स्टूडेंट देखा है. आप, और आपके लिए एक सीधी लाइन थी कि अच्छा पहले मैंने स्कूल जाना है, फिर मैंने जो है वो कॉलेज जाना है, फिर मैंने यूनिवर्सिटी जाना है. और आप जब स्कूल में होते हो तो ऑब्वियसली आप 10 साल स्कूल में होते हो, तो आप कभी उस टाइम इतना सोच नहीं सकते कि ओ देयर विल बी अ टाइम कि आई वांट बी अ स्टूडेंट. तो जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो और आप आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम पे आ रहे हो, तो यू रियलाइज कि यार मैं अब स्टूडेंट नहीं रहूँगी. आई वुड बी एन एडल्ट और अ ग्रेजुएट और एम्प्लॉयड, और मतलब कि मैं अब स्टूडेंट नहीं रहूँगी. और आपको शायद जब आप स्टूडेंट हो तो आपको रियलाइज ना हो कि हाउ मच यू लाइक बीइंग कॉल्ड अ स्टूडेंट, लेकिन जब आप स्टूडेंट नहीं रहते तो यू रियली मिस बीइंग कॉल्ड अ स्टूडेंट. लाइक बीइंग अ स्टूडेंट is so much, maybe I can't put it in right words, लेकिन it's so stressless. Not academically, obviously academic pressure तो होता है, लेकिन जो in real life pressure और चीज़ें और सब कुछ आपका वेट कर रही हैं, being a student really में वो सब प्रेशर नहीं होता. और obviously you also get a lot of discounts if you are a student, so I miss that too. I miss watching movie in Emporium Mall 300 रुपये में. अब तो मुझे लगता है स्टूडेंट कार्ड पे भी वैसे 300 रुपये की नहीं मिलती, लेकिन वैसे आई थिंक के द टाइटल स्टूडेंट्स गिव्स अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन. और वो आपको वो समहा आप जब स्टूडेंट होते हो तो आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब आप ग्रेजुएट होते थे देन यू रियलाइज कि आई वॉन्ट बी अ स्टूडेंट एनी मोर. तो ऑब्वियसली अभी जब से आपने अपना होश संभाला है, यू आर बीइंग कॉल्ड स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट एंड यू आर फाइनली एट द स्टेज जब आप स्टूडेंट नहीं रहोगे. एंड इट्स अ बिट स्ट्रेसफुल कि यार आगे क्या होगा.
और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि समहाउ till bachelors or even some people would agree, some people might not, लेकिन bachelors तक you still have your parents and your siblings, elder siblings, या some people who are influencing your decision, academic decision that you are making. Now you know you're on your own. और मजे की बात ये है कि योर होल लाइफ यू आर क्रेविंग टू बी इंडिपेंडेंट, कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद लूँ. वंस यू हैव द होल्ड ऑफ मेकिंग योर ओन डिसीजंस, तो यू आर डाइंग कि यार कोई आए और मुझे कुछ बताए, मुझे कुछ गाइड करे. मैं कंफ्यूज हूँ, अपने लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए स्पेशली बहुत मुश्किल है मेरे अपने लिए डिसीजन लेना. आई रियली मिस दैट टाइम कि जब मुझे पता होता था कि ओ ये चीज़ है और मुझे ये फॉलो करनी है. लेकिन अपने लिए डिसीजन लेना जब आपके सामने इतनी चॉइसेस हों और ये सोचना कि यार इनमें से मेरे लिए क्या बेस्ट चॉइस है, वेरी डिफिकल्ट. और मैं तो बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ. शायद इट्स जस्ट मी, क्योंकि मैं एक कंफ्यूज्ड बंदी हूँ. नहीं, मैं इतनी कंफ्यूज नहीं हूँ खैर. लेकिन मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ डिसीजन ऑफ योर ओन, एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या होना है. अब ना, मैं बचपन से आई वुड fantasize, it would be very fascinating, not fantasize, fascinating, sorry, I would be very fascinated with the idea of working in office, corporate job, ऑफिस में काम मुझे लगता था कि बहुत इट्स वेरी फन. जब व्हेन आई डिड माय इंटर्नशिप, इट वाज इन हार्डीज, तो जब मैंने वो अपनी इंटर्नशिप की, इट वाज वेरी डिप्रेसिंग, वेरी डिप्रेसिंग. मैं टाइम देख रही होती थी कि कब 5 बजेंगे और मैं यहाँ से जा सकती हूँ. इट्स सो क्वाइट, इट वाज सो क्वाइट. मुझे लगता है कि दैट हैड टू डू विद दैट ऑफिस, क्योंकि लोगों के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं ऑफिस में. लेकिन मुझे फिर यूनिवर्सिटी की ज़्यादा अहमियत जागी. मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी इज़ वेरी फन, पढ़ना तो बहुत आसान है, ऑफिस में बैठना बहुत मुश्किल है. मैं सबको यही कहती थी कि यार पढ़ाई बहुत आसान है, ऑफिस में बैठना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिप्रेसिंग. तो वहाँ से भी मैं, क्योंकि और आई वॉज डूइंग इट इन माई फाइनल ईयर, तो मैं फाइनल ईयर में हमेशा ही तो और ज़्यादा हो गई थी कि यार नहीं, मुझे नहीं जाना प्रोफेशनल लाइफ में, मुझे नहीं कॉर्पोरेट चाहिए, आई डोंट वांट टू बी दैट. लेकिन ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग टू. और आई थिंक मैंने बहुत सी ऐसी बातें कर दी हैं जिसकी वजह से अगर एक इंसान ये पॉडकास्ट सुन रहा है कि यार शायद थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, वो और शायद दुखी हो गया है, क्योंकि मैं तब से यही बोली जा रही हूँ. नो, द तसल्ली वाला पार्ट विल कम. लेकिन मैं थोड़ी बेस बना रही हूँ कि व्हाई वुड यू गेट अ डिप्रेशन और एंजाइटी आफ्टर ग्रेजुएटिंग. Then you don't know if you want to pursue masters, if you want to go abroad, or if you want to get a job, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन है और डिफरेंट इंसान का डिफरेंट ओपिनियन है. कोई टीचर आपको बोलेगा कि बेटा मास्टर्स करना है फॉरेन कर लो, कल ही जाके एडमिशन ले लो और इसी यूनिवर्सिटी में ले लो. कोई टीचर आपको बोलेगा कि नहीं, पहले एक्सपीरियंस लो फिर मास्टर्स करना. कोई टीचर आपको बोलेगा कि बेटा आपकी फील्ड की तो नौकरियां है ही नहीं, आपको तो परेशान होना चाहिए कि आपने करना क्या है, पता नहीं आपके फ्यूचर का क्या बनना है. कोई टीचर आपको ये सीनियर बोलेगा कि भाई पाकिस्तान से निकलने की करो, निकलो निकलो निकलो. तो आप बड़े कंफ्यूज हो कि यार व्हाट शुड आई डू. इतनी ज़्यादा ऑप्शंस है, मैं एक टाइम पे क्या करूँ, क्या सोचूं, क्या ना करूँ. और I'll try to figure it out for you, और I will attempt to try to figure it out for you. क्योंकि मुझे ना, बाय द वे, आज मैं अपनी जो एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई ऑलवेज हैव 3-4 पेजेस नोट्स रिटन. ठीक है ना, और आपको शायद आवाज़ भी आती हो मेरे पेज पलटने की. मैं नोट्स बनाती हूँ जो भी मैंने पॉडकास्ट में लिखना हो. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम, लेकिन आफ्टर अ वाइल मेरे ख्याल से जो मैंने एकेडमिक जर्नी की बनाई थी उसमें मैंने नोट्स नहीं किए थे. और अब दिस इज़ द पॉडकास्ट जिसमें मैं नोट फ्री हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि देर आर 2-3-4 पीपल जिनसे मैं ऑलरेडी ये डिस्कशन कर चुकी हूँ, जो ज़रा क्लोज फ्रेंड्स हैं और जो ग्रेजुएट हो रहे हैं कि अच्छा ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो आई थिंक कि मेरी वो सारी टिप्स जो है ना मेरी फिंगर टिप्स पे हैं. तो मुझे लगा कि मुझे नोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो आई एम डूइंग इट फ्री स्टाइल टुडे. वी आर ऑन ऑटो पायलट, इफ दैट्स अ गुड फ्रेज टू यूज इन दिस सिचुएशन. मैं बोल देती हूँ चीज़ें और फिर मुझे रियलाइज होता है कि नहीं रबिया, दैट डजंट मेक सेंस ना. ना बोंगी मारो. लेकिन खैर, वेयर वर वी. दैट्स द थिंग कि मैं बीच में अपनी आई फॉरगेट, आई कंप्लीटली ब्लैंक आउट कि हम क्या बात कर रहे थे.
लेकिन बेसिकली हाँ मैं यही कह रही थी कि वील ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट शुड यू डू, और आपके इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं आगे. Then there's this fear ke we are talking about the fears, by the way. Then there's this fear, and this my one friend Maheen, she also shared this fear कि आपको होता है कि आपके अपने दोस्तों से नहीं रोज मिल सकेंगे, ऑब्वियसली राइटफुली सो, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज ऑब्वियसली इंजॉयबल, यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स एवरी सिंगल डे एंड यू आर हैविंग फन विद देम, और आफ्टर ग्रेजुएशन यू रियलाइज दैट वाज अ प्रिविलेज. और फिर आपको, आप ऑब्वियसली यू आर जस्ट stressed out कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा, इट वॉन्ट बी द सेम फॉर यू. दीज आर ऑल दीज थिंग्स, वील डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन, सो स्टे ट्यून्ड. मैं वैसे इंट्रोडक्शन पहले एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक, तो इस वजह से we'll make that transition. और पिछली एपिसोड माय सिस्टर रियली लिसन टू माय फर्स्ट एपिसोड एवर, पिछली बार जो मैंने वो प्री ग्रेड बच्चों के लिए की थी जो कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं. और क्योंकि वो उस स्टेज पे है तो उसने वो मेरी पॉडकास्ट सुनी और वो कहती है कि क्या तुम्हारी फजूल से ट्रांजिशन आवाज़ है, लेकिन आई लव दैट ट्रांजिशन वॉइस, transition whatever audio. So I hope you all like that too क्योंकि it's very fun. So खैर, so we'll take a break and then I'll come back. Okay, so meanwhile I was having a break, someone DM'd me, a very good friend of mine DM'd me, and basically I posted this story कि I am making a podcast on it, and she corrected me because she's doing psychology, so she's an actual person who is doing and studying all of this, unlike me who doesn't know shit. So basically, she said कि post graduation, I took such a long pause because I was trying to remember. She said there's no such thing as post graduation depression or anxiety. She didn't say anxiety, like I think I am assuming they're a medical term of in a very serious condition, and there's nothing like that happening. So yeah, and she said कि I could call it post graduation blues. And first of all, I really thanked her for giving me a title idea because when I tell you I struggle with coming up with the title of the podcast, which is the main thing, which is the thing that would make it or break it, which would make a person go and check a podcast episode out. So and I always am so bad with coming up with titles, तो she really मतलब solved my thing. तो अच्छी बात ये है कि मैंने मैसेज तभी देख लिया जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही थी, सो आई कुड करेक्ट यू ऑल टू. सो गाइज देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट अ रियल टर्म, सो वी शुड नॉट यूज इट, और ऑब्वियसली या, तो वी शुडंट. सो सॉरी कि मैंने ये किया. आई वॉज एक्चुअली वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज जिसपे वो टाइटल था और आई थॉट दैट देयर इज दिस थिंग, लेकिन ऑब्वियसली आई शुड हैव बीन बेटर अवेयर एंड आई नेक्स्ट टाइम रिसर्च बिफोर यूजिंग सच अ हैवी टाइटल फॉर माई सेल्फ, एंड आई apologize if I did something in the past regarding this. Khair, moving on, we were talking about post graduation blues, और ऑनेस्टली शुक्र है शी करेक्टेड मी, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के आई थिंक कि मैंने जो भी बात करनी है वो, या जो भी मेरा टाइटल या जो भी मैं चीज़ें अंदर डिस्कस कर रही हूँ, जो भी चीज़ें कर रही हूँ, दे आर नॉट दैट हैवी. तो आई डोंट नो व्हाई आई केम अप विद दैट टाइटल, आई एम सो सॉरी. ये होता है कि जब आप कोई बहुत ज़्यादा वीडियोस और आर्टिकल्स एक टाइटल के पढ़ लो और आप फिर अपनी पॉडकास्ट भी उसी के नाम कर दो. ओरिजिन ओरिजिनलिटी भी कोई चीज़ होती है. तो आई नो बेटर नेक्स्ट टाइम, लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल कि शी रियली करेक्टेड मी, वरना बहुत बेइज्जती हो रही थी कि अगर मैं पब्लिकली ये पोस्ट कर देती और फिर मतलब मैं इतने ज़्यादा लोगों को मिसगाइड कर देती ऑब्वियसली. तो खैर, अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन ब्लूज. तो नाउ तो नाउ अब अच्छा, वील स्टार्ट व्हेन यू गेट ग्रेजुएटेड. जब आपका लास्ट पेपर होता है या जब आपके पेपर चल रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू नॉट नीड टू बी सैड, इट्स अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट. मैं बहुत सैड थी, तो इस वजह से आई एम टेलिंग यू कि इट्स अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट दैट यू एंडेड योर यूनिवर्सिटी. इट्स नॉट something to be sad about. You should be proud of yourself and you should celebrate that you made it. You did it.
आप बचपन में सोचते थे कि यार पता नहीं कब मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी और मैं कब इस से निकलूंगा या निकलूंगी, तो you did that and you should celebrate it. You should have every right to celebrate it with, obviously you, आप इमोशनल हो जाते हो, लेकिन ट्राई टू मेक इट नॉट दैट इमोशनल फॉर योर सेल्फ. ऑब्वियसली आपके जहन में होता है कि आई एम मीटिंग दिस पीपल फॉर योर लास्ट टाइम, आई जस्ट गैस लाइट माई सेल्फ कि यार नहीं, आई विल मीट देम अगेन. दैट रियली वर्क्स. और आई मेट ऑल दोज पीपल अगेन, हमारी कॉन्वर्केशन हुई या जो भी हुआ, तो यू विल मीट दोज पीपल अगेन. इट्स नॉट लाइक इट्स द फाइनल गुड बाय, एंड इट शुडेंट बी. और आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि यार मैं इस बंदे से आखिरी बार मिल रहा हूँ, आपको मिलना चाहिए. एंड ऑब्वियसली देर्स, you have access to that person through messages and text and calls, so you can call them any single time and you can still stay very updated with them. मेरी बहुत सी ऐसी दोस्तें हैं जिनसे मैं कभी ज़िंदगी में मिली भी नहीं हूँ, या फिर मैं, मेरी स्कूल की जो फ्रेंड्स हैं उनसे हम साल में एक बार मिल लेते हैं या दो बार मिल लेते हैं, वी आर वेरी इन टच विद ईच अदर. तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से मिल रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि यार वी आर मीटिंग फॉर द लास्ट टाइम एवर. नहीं. यू, अगर आप अपने जहन में, देर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट that you have to kill in your mind in order to be positive about your graduation. If not positive, then you shouldn't be at least negative about your graduation. और सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसा नहीं आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा जो बाद में आपको नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली यू विल मिस ऑल दैट थिंग्स, लेकिन you can still visit your campus whenever you want. You can still meet the people whenever you want. You can still just go and sit in the campus. मज़े की बात ये है कि your heart will naturally grow out of things. खुद ही ऐसा हो जाएगा. मैं फर्स्ट जब ग्रेजुएट हुई हूँ तो उससे पहला सेमेस्टर मैं बहुत यूनिवर्सिटी गई, बहुत ज़्यादा गई. उसके बाद अब मेरा दूसरा सेमेस्टर, इज़ बिन अ ईयर सिंस आई ग्रेजुएटेड, तो अब मेरा इतना नहीं दिल चाहता यूनिवर्सिटी जाने का. अब मेरे फ्रेंड्स सैटरडे को जा भी रहे हैं यूनिवर्सिटी, चलो चलो चलें, और मेरा नहीं दिल चाह रहा यूनिवर्सिटी जाने का क्योंकि मैं इतनी गर्मी में जाके क्या करूँ. तो इस वजह से योर हार्ट विल नेचुरली ग्रो आउट ऑफ इट. आपका खुद नहीं दिल चाहेगा. आपको पुराना टाइम सोच के और याद करके बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यू विल बी लाइक इट्स ओके, अच्छा टाइम था, गुजर गया. अब मैं जिस टाइम में हूँ आई एम फाइन विद दैट. सो, और द सेम गोज विद पीपल. मैं बहुत दुखी थी कि यार रोज़ बात होती थी, रोज़ मिलते थे, नहीं हो पाएगी, नहीं हो कर सकेगी. अगर आपका दिल है, मतलब कि इफ़ यू वांट टू, यू कैन स्टिल मीट योर फ्रेंड्स मे बी once a week, और मतलब कि more than that, or maybe you can talk to them every single day, which is as good as meeting them. You're still मतलब talking and having a conversation, और उनकी भी आप सुन रहे हैं. तो बात ये है कि आपका खुद ही जो दोस्तियां रहनी है वो आपके साथ रहेंगी, और जो नहीं रहनी, यू विल नेचुरली दे एंड, और योर हार्ट विल ग्रो आउट ऑफ इट. ठीक है. तो जो इंसान आपसे ताल्लुक रखेगा उससे आप भी रखोगे ऑब्वियसली. जो आपसे नहीं रखेगा, यू शुडंट बी सैड अबाउट इट, क्योंकि दे डू नॉट वांट टू कीप दैट रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप विद यू. और नॉट रिलेशनशिप, मतलब फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, दे डोंट वांट टू कीप दैट विद यू, या दे आर बिजी और उनको नहीं याद आती. और आपको एक दिन याद आएगा, वो इंसान दो बार याद आएगा, योर हार्ट विल ग्रो आउट ऑफ इट. मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि देर इज नॉट इवन अ सिंगल थिंग दैट यू विल मिस. योर हार्ट विल जस्ट ग्रो आउट ऑफ दैट थिंग. आपको कुछ अरसे बाद वो चीज़ उस तरह फैसिनेट नहीं करेगी जितना करती है. जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और मैं कैंपस में बैठी होती थी तो मैं कहती थी कि यार मुझे इतना याद आएगा ना कैंपस में बैठना. अब मुझे कोई कहे कि यार चलो चाह के कैंपस में बैठते हैं, मैं कहूँ यार रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं, क्या कैंपस में बैठ के करना है. अब मुझे आवाज़ आ रही होती है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो भी चीज़ हुई ना, जो भी आपका हुआ, आप नेचुरली आपका दिल उसमें से निकल आएगा. सेकेंडली, मुझे कोई कहे ना कि ओ, if you want, do you want to repeat all of that, do you want to go to university again, so my answer would be no, क्योंकि I'm very fine, I'm having very much fun earning money and spending it. तो मैं क्यों यूनिवर्सिटी अपने ब्रोक एरा में वापस जाऊं जहाँ पे मुझे एकेडमिक प्रेशर भी है, वो सब कुछ भी है. आई एम स्टिल एंजॉयिंग माई फ्रेंडशिप. व्हेन आई टेल यू देर आर सो मेनी पीपल इन यूनिवर्सिटी जिनसे मेरी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के बाद दोस्ती हुई है, और ऐसी दोस्ती हुई है कि वी आर वेरी क्लोज, और दे आर स्टिल इन यूनिवर्सिटी या दे ग्रेजुएटेड, लेकिन हम वी नेवर वर फ्रेंड्स इन यूनिवर्सिटी. और अब ग्रेजुएशन के बाद वी आर, और
मुझे बहुत मजा आता है, उनमें से कुछ लोगों से मैं मिली भी नहीं हूँ अभी तक। तो आई डोंट थिंक कि इट्स आपकी अगर दोस्ती सिर्फ कैंपस में बेस्ड थी और आपको ये खदशा है कि मेरी अब कैंपस लाइफ खत्म हो गया तो मेरी दोस्ती नहीं रहेगी, तो दैट फ्रेंडशिप वाज नॉट रियल। क्योंकि असल में दोस्ती तो वो होती है कि आप अलग अलग भी रह रहे हो लेकिन स्टिल आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, स्टिल दैट पर्सन इज द फर्स्ट और सेकंड पर्सन यू आर टेलिंग योर एवरी सिंगल थिंग टू, और आपको एक्साइटमेंट हो रही है कि आप उनसे अपनी चीज़ें शेयर करो। अगर आपकी फ्रेंडशिप सिर्फ एक बंदे से इसलिए बेस्ड थी कि आप उस बंदे से यू आर मीटिंग दैट पर्सन एवरी सिंगल डे, तो दैट वाज नॉट फ्रेंडशिप, यू जस्ट वर लिविंग विद दैट पर्सन एवरी सिंगल डे, और आपकी बन गई। और अब जब आप लोग एक रोज नहीं मिल रहे तो आपका ताल्लुक खत्म हो गया है। तो और आपका, और मुझे नहीं लगता कि आपको इतना फील होता है, योर हार्ट ग्रोज आउट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। तो आई डोंट नो कि इफ दिस सर्व्स एज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, लेकिन आई थिंक दैट दिस शुड सर्व एज अ मोटिवेशन कि इट्स नॉट दैट सैड। आप नहीं विंटर नाइट में बैठ के रो रहे होगे कि यार मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, सब कुछ कितना अच्छा था। आपके ना, ऑब्वियसली यू विल मिस दैट टाइम, लेकिन आपको कोई ऑप्शन देगा कि ओ डू यू वांट टू डू ऑल ऑफ दिस अगेन, तो यू विल बी लाइक नो आई डोंट वांट टू। वो फेज था, मैंने एंजॉय किया, अच्छा था। नाउ दिस इज माई न्यू फेज एंड आई एम एंजॉइंग दैट। सेकेंडली, जो मैंने गलती की है ना, और आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू डू दैट गलती, वो ये है कि आई कैन गारंटी यू कि ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत मजा आता है। यू स्टार्ट अर्निंग और ओके, आपको वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है जो आप पूरी जिंदगी जिसके बारे में सोच रहे थे, कर रहे थे, ठीक है ना। यू गेट दैट एंड इट्स वेरी फन, यू गेट टू मीट योर फ्रेंड्स, you get to spend money on those things that you always wanted. In my case that happened, ठीक है ना। आप अपने दोस्तों के साथ फैंसी रेस्टोरेंट्स भी जा सकते हो, आप और ज़रा मेजर प्लान बना सकते हो। और मुझे लगता है कि यू कैन ड्रीम बिग एंड यू कैन गेट द थिंग्स यू ऑलवेज वांटेड। एंड ऐसा नहीं है कि योर लाइफ इज़ वेरी डिप्रेस्ड। ऑब्वियसली जो मैंने अपने ऑफिस का बताया था, मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरा एक सीन था जो मैंने internship की थी। every single friend of mine who is doing a job in their office is very happy with their job और उनका environment। और मुझे लगता है with now with accounting firms and software houses जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स माहौल होता है वहाँ पे, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। कुछ मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ कि पीछे म्यूजिक चला होता है, या यू हैव द फ्रीडम टू वर्क वाइल लिसनिंग टू समथिंग, मे बी लिसनिंग टू पॉडकास्ट। सो इफ यू आर एट अ जॉब और आपको इजाज़त है तो डू लिसन टू माई पॉडकास्ट। तो खैर, आई डोंट थिंक कि ऑफिस अब में अब वो रिस्ट्रिक्शन है। वो शायद मेरे साथ एक केस था स्पेशल, लेकिन आई डोंट थिंक कि अब उस तरह है। और आई हैव सीन ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैविंग सो मच फन इन देयर ऑफिस, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, उनके ट्रिप्स जाते हैं, दे हैव फन, वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जब ऑब्वियसली यू डू, मैं एक तो ऑब्वियसली बहुत बोल रही हूँ, ऑब्वियसली वो टाइम अपनी जगह है, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद आई कैन गारंटी यू द टाइम इज़ वेरी मच फन एंड वेरी मच इंजॉयबल, एंड यू विल एक्चुअली इंजॉय दैट इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग कि मैं जो अब टाइम भी गुजार रही हूँ वो भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं आई डू बिलीव कि यूनिवर्सिटी का टाइम मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन द टाइम आई एम स्पेंडिंग राइट नाउ आई एम रियली इंजॉइंग दैट, क्योंकि आई एम डूइंग द थिंग्स दैट आई रियली लव। आई हैव अ पॉडकास्ट, मैं मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिस पे आई गेट टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल। आई एम मैं जब से स्टूडेंट हूँ ना, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने साल में एक भी कोई शो देखा हो। जब से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ ना, देर इज ऑलवेज अ बुक आई एम रीडिंग, देर इज ऑलवेज अ शो आई एम वॉचिंग, एंड इट्स सो मच फन टू डू ऑल ऑफ दिस। और मैं जब स्टूडेंट थी आई कुड नेवर फाइंड द टाइम टू डू ये काम और कुछ देख सकूं, वो कर सकूं। तो दिस टाइम इज़ वेरी चिल एंड वेरी फन। यू डोंट हैव दैट एकेडमिक प्रेशर। जब आप देखोगे ना कि बाकी आपके जूनियर्स एग्जाम दे रहे हैं और आपका कोई एग्जाम नहीं है अगले दिन, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ट्रस्ट मी। जब बहुत सर्दी होगी एंड यू डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको बहुत खुशी होगी। जब बहुत गर्मी होगी एंड यू डोंट हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी इन दिस तत्ती गर्मी, और आप अपने ऑफिस में आराम से एसी में बैठ के काम कर रहे हो, तो आपको बहुत खुशी होगी लिटरली। आई होप आपके ऑफिस में एसी हो, होता ही है वैसे ऑफिस में एसी। खैर। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि मेरा जो आगे का टाइम है ना ग्रेजुएशन के बाद, वो भी बहुत अच्छा टाइम है।
और मैं जब अपनी ग्रेजुएशन के फेज से गुजर रही थी तो मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी कि नहीं यार, नहीं, मतलब यही बेस्ट टाइम है, इसके बाद तो बहुत बुरा होगा, ये होगा वो होगा। और अब मैं सोचती हूँ कि यार नहीं, द टाइम, अब जो टाइम है वो बहुत अच्छा है, एंड आई वुड डू नथिंग टू गो बैक टू दैट यूनिवर्सिटी टाइम। मतलब मुझे नहीं चाहिए वो, ठीक है वो अपना टाइम था, गुजर गया, अच्छा गुजरा। मुझे बस ये थोड़ा रिग्रेट है कि ऑब्वियसली मेरे 3 पूरे सेमेस्टर्स कोविड में वेस्ट हो गए, एंड आई डिडंट गेट टू स्पेंड दैट इन यूनिवर्सिटी। लेकिन वो भी मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि आई मेट माई फ्रेंड्स दो जो कि अभी भी यूनिवर्सिटी में हैं ऑन फ्राइडे, एंड उनमें से मोस्टली जो हैं दे आर इन देयर मिडिल सेमेस्टर, फिफ्थ सिक्स्थ। और मेरे वो सेमेस्टर जो थे वो कोविड में गुजर गए थे, तो मुझे यूनिवर्सिटी की बहुत अहमियत थी, वो सारे आवाज़ार हो चुके हैं कि यार ग्रेजुएट हों जल्दी से, बस बहुत है, बहुत हो गया है। तो इस वजह से आई थिंक कि शायद अच्छा था, मुझे अहमियत हो गई। लेकिन ऑब्वियसली आई डू रिग्रेट कि कोविड आ गया उस वजह से। एक तो मैं मुझे लगता है कि मेरे ग्रेड्स भी काफ़ी नीचे हुए हैं कोविड में, लोगों के ज़्यादा होते हैं, मेरे कम हुए हैं। आई वॉज एन एक्सेप्शनल केस क्योंकि मैंने पढ़ना छोड़ दिया था कोविड में। आई डू बेटर विद क्लासेस और फिजिकल क्लासेस, बस मुझे ये था। लेकिन अब आई विल डू नथिंग कि मुझे कोई ये भी कह देना कि अच्छा वो 3 सेमेस्टर अब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है जाके पढ़ लो, मुझे नहीं करना, क्योंकि आई एम रियली इंजॉइंग द टाइम आई हैव। और कभी कभी आपको खुद आपको बताना पड़ता है कि यार मैं खुश हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, ये टाइम अच्छा है। एंड आई मेड अ पोस्ट रिसेंटली ऑन माई इंस्टाग्राम कि यू हैव टू बी हाउ आई स्टे कॉन्टेंट विद माई लाइफ, एंड दिस इज हाउ आई डू। कि आई टेल माई सेल्फ कि यार वो टाइम भी बहुत अच्छा था, ये टाइम भी बहुत अच्छा है, एंड आई टू गेट द प्रोज दैट आई एम डूइंग सो मच दैट आई वांटेड टू। मैं किसी को भी बताऊँ ना कि आई हैव अ रिमोट जॉब, तो वो समझते हैं कि पता नहीं कौन सी जेल में बैठी हुई है। हाँ, समटाइम्स आई डू फील दैट कि आई वांट टू गो आउट, लेकिन अब आके आई डोंट रियली मिस। और शुरू में मुझे था, लेकिन अब आई डोंट रियली डू, क्योंकि आई एम डूइंग सो मच चीज़ें, एंड आई हैव अ प्रिविलेज टू डू सो मच दैट आई वुडंट हैव डन इफ आई वाज हैविंग अ फिजिकल जॉब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिजिकल जॉब बुरी है, फिजिकल जॉब बहुत अच्छी है। और जो फिजिकल जॉब कर रहे हैं ना, वो शायद कभी रिमोटली जॉब का सुनते हैं ना, वो ज़रा डर जाते हैं, स्पेशली जो ग्रेड्स होते हैं ना, उनके लिए रिमोट जॉब, ग्रेड्स नॉट ग्रेड्स मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स या फिर जो अभी ग्रेजुएशन की फेज में पहुंच चुके हैं, उनके लिए रिमोट जॉब इज़ वेरी स्केरी, इट्स अ नाइट मेयर टू देम। क्योंकि वो कहते हैं कि यार घर में हर टाइम, क्योंकि आपको इतनी आदत हो गई होती है ना यूनिवर्सिटी आने की और सोशलाइज करने की, कि आपको लगता है कि आप कैसे करोगे वो सब कुछ, लेकिन आप कर लेते हो, खैर। तो तो इवन इफ यू आर डूइंग अ फिजिकल जॉब, आई थिंक इट्स वेरी एम्पावरिंग। और आप फिर भी यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू हैव एन हॉबी, और कुछ और करो, एंड यू हैव सम मनी टू, नॉट अ लॉट ऑफ, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग, ये मैं क्या बोल रही हूँ, खैर, you have money too to fulfill the things you always wanted to. You can go out and watch a movie with your friends at weekend, you can go out and treat your family, there's so much that this phase offers you. And मैं एक बात बताऊं, दिस इज अ वेरी, तो इस वजह से मैं ना जब यूनिवर्सिटी में थी ना, तो आई वुड हैव दिस स्टेटमेंट कि देर इज नथिंग आई लुक फॉरवर्ड इन माई लाइफ, बस अच्छा टाइम खत्म हो गया है, नाउ आई एम जस्ट गोना लिव माई लाइफ, कि बस जैसी गुजरे सही, अब क्या और डेवलपमेंट आ सकती है। लेकिन नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, मैंने मुझे ट्रैवल करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है, इस टाइम की इंपॉर्टेंस की रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं यार, दिस इज अ वेरी गुड टाइम। और अब आई टेल माई सेल्फ कि जो आगे का टाइम आएगा वो भी बहुत अच्छा होगा, जो नेक्स्ट फेज होगा। तो इस वजह से आई एम टेलिंग यू गाइस टू टेल योर सेल्फ कि the time you have right now and the time that is coming would be as good. It won't be similar to this, it could be similar to this, but it won't be that bad the way you think कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, ये नहीं होगा, it would be as good as this time. You guys, I just checked my voice के whatever it's called decibels, I don't know, मुझे नहीं पता। खैर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ऊंची बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी अगर मैं बहुत ऊंची बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना था। और मैं पिछली एपिसोड में, आई वाज पिछली 2 एपिसोड से आई वाज डूइंग सो गुड, और इस एपिसोड में आई स्टिल गॉट हाइपर। लेकिन मे बी cuz आई वाज सो एक्साइटेड टू रिकॉर्ड एन एपिसोड अबाउट इट, मे बी इसलिए। लेकिन आई होप इट्स नॉट दैट बैड फॉर यू, आई होप आपके कान सलामत हैं। प्लीज टर्न डाउन योर वॉल्यूम, आई विल एक्चुअली सी कि मैं कैसे आई आई रिपेयर दिस एपिसोड। अच्छा, नाउ the number one tip is that कि you have to tell yourself कि
आगे का टाइम भी बहुत अच्छा है। द सेकेंड टिप इज़ दैट कि ऑब्वियसली यू आर वेरी ओवरवेल्म्ड कि मुझे क्या जाना है, क्या करना है, और मैंने 4 ऑप्शंस दी कि 4 सिनेरियोज़ हैं, कोई टीचर आपको ये बोल रहा है या सीनियर आपको ये बोल रहा है, कोई ये एडवाइस कर रहा है, कोई वो एडवाइस कर रहा है, ठीक है? नाउ थिंक वन थिंग एट वन टाइम। ऑब्वियसली सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है और लग रहा है हाँ बहुत तुमने रबिया अच्छी बात कर दी, हमें पता है, ज़्यादा बनो मत, लेकिन इट्स वेरी इफेक्टिव क्योंकि पीपल आर नॉट। और जब मैं ये किसी को बताती हूँ देर लाइक, मैंने बहुत लोगों को ये बात बताई है ग्रेजुएशन के बाद कि यार एक वक्त में एक चीज़ सोचो, क्योंकि आई डिड दैट टू माई सेल्फ और मेरे जहन में एकदम से खुद ही आइडिया आया, आई टोल्ड इट टू माई सेल्फ, नो वन टोल्ड मी, लेकिन आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट्स इफेक्टिव एंड इट हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल के थिंक ऑफ वन थिंग एट वन टाइम। जब मैं ग्रेजुएट हो रही थी मेरे जहन में था ओ आई हैव टू डू मास्टर्स, मुझे मास्टर्स करना है, मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे जॉब चाहिए, मैं क्या करूँ, पहले मैं कहाँ जाऊँ, किसकी इन्फॉर्मेशन दूँ। देन आई टोल्ड माई सेल्फ, रबिया व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू राइट नाउ, कैन यू डू मास्टर्स, अफोर्ड कर सकती हो मास्टर्स, क्योंकि यू वांटेड टू डू मास्टर्स बाय योर सेल्फ अपनी कमाई से, और यू डोंट वांट टू पुट मास्टर्स का प्रेशर ऑन योर फैमिली एंड यू कांट अफोर्ड दैट, ठीक है? तो डू यू वांट, कैन यू डू मास्टर्स राइट नाउ? आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं। तो व्हाट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी इज टू गेट अ जॉब, टू सिक्योर अ जॉब। एंड ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। कुछ लोगों को नई जॉब करनी, उनकी फैमिली उनको मास्टर्स के लिए फंड कर सकती है, बेशक अगर उन्हें अब्रॉड जाना है या कहीं पाकिस्तान में मास्टर्स करना है, तो उनको होता है कि नहीं हमें फॉरेन मास्टर्स करना है, क्योंकि अगर मैं अफोर्ड करता हूँ या मेरी फैमिली फंड कर सकती है मुझे मास्टर्स के लिए, तो इट्स ओके। तो आपको अब ये सोचना खुद है, इफ गोइंग अब्रॉड इज योर फर्स्ट ऑप्शन एंड यू इफ यू हैव द मनी एंड रिसोर्सेज टू गो, तो फिर आप ग्रेजुएशन के फौरन बाद उसकी सोचो, आइल्स दो इफ इट्स रिक्वायर्ड, एजेंसीज में जाओ, जो भी ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन लो, फिर जॉब का ना आप सोचो। लेकिन अगर आप ये भी कहो कि अच्छा मैं जॉब भी ढूंढूं साथ साथ मैं एजेंट्स भी देखूं, तो इट वुड बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू। तो डू वन स्टेप एट वन टाइम। ये हो सकता है कि पहले आप जॉब लेके उसमें काम करो और फिर आप 1-2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या महीने बाद जब सेटल हो जाओ, तो फिर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट ऑप्शन कि यार ये तो मैंने टेम्परेरी जॉब रखी है, अब मेरी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। स्पेशली कुछ ऐसी, जैसे मैंने जो करना है, मैंने एमबीए करना है, अगर मैंने कभी किया तो उसमें रिक्वायर्ड होता है कि यू शुड हैव अ वर्क एक्सपीरियंस बेसिकली। तो फॉर दैट आई ऑलवेज एडवाइस कि आप ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद जो है वो जॉब शुरू कर दो, ताकि यू कैन, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इतना नहीं ज़रूरत होती वर्क एक्सपीरियंस की, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होती है, तो दैट यू हैव टू डिफाइन। लेकिन जैसे एमबीए है ना, तो मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि गेट अ जॉब एज सून एज यू ग्रेजुएट। अगर आपका एमबीए का फ़ौरन करने का प्लान नहीं है, इफ़ यू वांट टू वेट अ ईयर, तो एटलीस्ट यूटिलाइज दैट ईयर इन डूइंग अ जॉब, ताकि आपके पास वो एक्सपीरियंस हो अटैच करने के लिए कि या आई वर्क फॉर अ ईयर और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरा मैनेजेरियल एक्सपीरियंस ये है और मुझे यहाँ ये चीज़ें करने को मिली हैं। लेकिन अगर आपने अब्रॉड जाना है, और कुछ लोगों की फैमिलीज बहुत इंथ्यूजियास्टिक होती हैं, इंथ्यूजियास्टिक, कुछ लोगों की फैमिलीज कहती हैं कि नहीं यार अब्रॉड जाओ बेटा या बेटी, वी डोंट वरी अबाउट द मनी, हमारे पास है, तुम बस निकलो यहाँ से। तो अगर आपके पास है ऐसी अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर जाओ, ठीक है? ठीक है, शौक, मुझे लगता है कि बहुत से लोग शौक के लिए, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो फॉरेन मास्टर्स कर लें या फॉरेन अब्रॉड का अपना प्रोसेस शुरू कर लें, लेकिन उनको बस शौक होता है जॉब करने का। दैट्स फाइन इफ़ यू वांट टू डू इट, बट आई वोंट सजेस्ट यू टू वेस्ट योर टाइम। जो आपने करना है और जो आपका मेन गोल है फिलहाल, आप जल्दी से वो कर लो, ठीक है? अब नेक्स्ट थिंग इज़ दैट के कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ओ आई वॉन्ट टू वेट अ ईयर बिफोर डूइंग मास्टर्स, जो कि मैंने इनिशियली सोचा था कि मुझे 1 साल वेट करना है फिर मैं मास्टर्स का देखूंगी। एंड ऑब्वियसली मुझे जॉब के बाद मास्टर्स करना था, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस वक्त मास्टर्स करना, तो मैंने वेट किया। ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड, मुझे लगता है मेरा ऑब्वियसली ना दोबारा वापस आ गया है, मैं हर बात पे बोली जा रही हूँ, लेकिन खैर, जब आप पढ़ाई छोड़ देते हो और गैप ईयर आ जाता है, तो या आपका फिर पढ़ने का नहीं दिल चाहता, लेकिन आप एक बार पढ़ना शुरू कर दो, 1-2 क्लासेस मुश्किल होती हैं, उसके बाद आप उसमें चले जाते हो, सिंक्रोनाइज कर लेते हो, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट।
what I wanted to say. You just need to figure out what you want to do first, what is most important to you, what's your first priority. If you want to do masters right after, तो आप फिर अप्लाई करना शुरू कर दो. लेकिन पाकिस्तान में ये होता है मोस्टली कि जब तक आप ग्रेजुएट होते हो तब तक मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के मास्टर्स के एडमिशन ख़त्म हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके बैचलर्स के साथ ही शुरू होते हैं. और आजकल मेरे ख्याल से एडमिशन खुले हुए हैं, लेकिन अभी यू आर सो बिजी विद योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड योर एग्जाम्स एंड ऑल ऑफ दैट कि अभी आप नहीं ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते मास्टर्स के लिए, और आप वो उसको अटेंशन नहीं दे सकते. तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके स्प्रिंग सेमेस्टर में भी एडमिशन हो जाते हैं. यू कैन गो इन दैट इफ़ यू वांट टू. वरना आप जब ग्रेजुएट हो तो आप जॉब शुरू कर दो, और उसके बाद फिर जब एक साल गुजर जाए तो फिर आप फिर से अप्लाई कर दो. मेरी बहुत सी इंजीनियरिंग की दोस्तें थी, दे यूईटी के में मुझे लगता है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के वैसे खुले होते हैं एडमिशन, यू जस्ट नीड टू डू अ लिटिल बिट रिसर्च. लेकिन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माई, टू फ्रेंड्स ऑफ माइन, नॉट अ लॉट, एक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और एक ने केमिकल इंजीनियरिंग की थी, और उन दोनों का यूईटी उन्होंने अप्लाई किया ग्रेजुएशन के बाद, उनका एडमिशन हो गया, एंड नाउ दे आर डूइंग देयर मास्टर्स फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी. तो लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्वियसली यू नीड टाइम टू फिगर आउट व्हाट यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो, या क्या करना है क्या नहीं. तो टेक दैट टाइम, और जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है, इफ़ यू कैन डू इट राइट नाउ तो वो करो. इफ़ यू कांट डू इट राइट नाउ तो फिर उसको अगले साल कहो कि अब मैं इसके बारे में अगले साल सोचूंगी जब इसके एडमिशन खुलेंगे. अभी लेट्स ट्राई टू फाइंड अ जॉब फॉर माई सेल्फ. ओके. विद अब्रॉड आई थिंक अब्रॉड के हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा होता है, क्योंकि इट टेक्स अ वाइल. अगर आप एक सेशन मिस कर दो तो दूसरा सेशन के लिए वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं. तो आई थिंक कि वो दैट वर्क्स फाइन, आप वो कर सकते हो. फॉर मी ऑब्वियसली आई न्यू के आई कांट गो अब्रॉड, और उसकी मैं मेरे ख्याल से एक डिटेल्ड एपिसोड बनाऊंगी कि क्या सीन है क्या नहीं है. लेकिन और आई हैव टू ऑब्वियसली ब्रिंग समवन हु एक्चुअली हैव गॉन देयर, उनको सारा प्रोसेस पता है. लेकिन बेसिकली आई कुडंट अफोर्ड टू गो टू अब्रॉड. इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव अगर आप स्पेशली किसी मेन कंट्री जाना चाहते हो. ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स बहुत हैं, लेकिन मेरी जो फील्ड है और मैं जो आगे करना चाहती हूँ वो बड़ा, वो हर कोई कर रहा है एमबीए, ठीक है, और उसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं आपको देता, क्योंकि इट्स द मोस्ट इन डिमांड प्रोग्राम एवर. तो बहुत कम है कि उसमें स्कॉलरशिप मिले. स्कॉलरशिप्स आर देयर, जितनी भी स्कॉलरशिप्स मैंने जर्मनी की, ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्लान. आई थिंक आई कांट डू अ वेरी डिटेल्ड रिव्यू अबाउट द स्कॉलरशिप्स, क्योंकि मैंने जो भी स्कॉलरशिप्स देखी हैं, आई वुड अगर आप लोग मुझे, ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइट्स, तो यू गाइज माइट नो द साइट्स. लेकिन अगर यू गाइज डोंट नो एंड यू वांट टू सी स्कॉलरशिप्स, तो मेरे पास दो तीन लिंक है साइट्स के जहाँ पे स्कॉलरशिप्स अपडेट होती रहती हैं. यू कैन गो एंड चेक दैट साइट आउट. मैंने जितनी भी स्कॉलरशिप्स देखी हैं, ऑब्वियसली जिन कंट्रीज़ की मैंने देखी है, माई पेरेंट्स वर लाइक क्या करोगी अकेले जाके, कैसे करोगी. कुछ मेरा भी नहीं दिल था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, तो मैं टालती गई. मे बी नाउ आई विल बी अ लिटिल बिट सीरियस सिंस इट विल बी 1 year सिंस आई ग्रेजुएटेड एंड लुक एट दोज. लेकिन बेसिकली मुझे अपना ख्वाब अब्रॉड जाने का बहुत फार फेच्ड लग रहा था. तो इस वजह से मैंने कहा कि अभी अभी जॉब पे फोकस करो रबिया. तो खैर, तो ये सीन है. तो यू हैव टू फिगर आउट. मैं बहुत लोगों से मिली हूँ जो जिनका प्लान है अब्रॉड जाने का. एंड तो अगर आपका प्लान है अब्रॉड जाने का, this should be the most important thing for you, and this should be the first thing you should be looking out and researching as soon as you graduate. ये ना हो कि एक साइड पे आप लिंक्डइन खोल के जॉब्स देख रहे हो और एक साइड पे आप एजेंसीज देख रहे हो जिनको आप विजिट करोगे, तो इट वुड बी पजलिंग, ठीक है. और इफ़ यू आर फीलिंग ओवरवेलम्ड कि यार मैं किस साइड पे जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो अपने लिए एक टास्क रखो और पहले वो कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट पे जाना. ठीक है. Okay. Now the second thing is that के once you have defined के मुझे जॉब ढूंढनी है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार आई टेक अ मंथ रेस्ट, उसके बाद मैं जॉब ढूंढूंगा या ढूंढूंगी. मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट अ नाइस अप्रोच. ऑब्वियसली इट माइट वर्क फॉर सम पीपल, सम इट माइट नॉट. बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ग्रेजुएशन से पहले जॉब तलाश करना शुरू कर देते हैं, और वो ग्रेजुएट होने के फ़ौरन एक और उनको मिल जाती है, और वो फ़ौरन अपने एग्ज़ाम्स के एक दो हफ्ते बाद जॉब कर लेते हैं. मुझे लगता है अ वीक इज़ इनफ फॉर यू टू रेस्ट, इवन अ डे और टू इज़ ऑल्सो इनफ. लेकिन ऑब्वियसली अ वीक और 2 week, और जब आप किसी जॉब को
करते हो तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पहले आप इंटरव्यू देते हो, फिर आपकी सिलेक्शन होती है, फिर आपको टाइम मिलता है सोचने का। तो आप इंटरव्यू भी दो तो फौरन अगले दिन नहीं बुला लेते कि हाँ आपकी जॉब पक्की है, आ जाएं कल से। ऐसा नहीं होता, बहुत एक प्रोसेस होता है पूरा। तो अगर आप 1 महीने का सोच रहे हो ना, तो हो सकता है कि जब आपकी वेकेशन खत्म हो, तब तक आपके बाकी सारे दोस्त जॉब्स करना शुरू कर दें और आपको लगे कि यार आई एम वेरी फार बिहाइंड, मैंने क्या किया, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली यू स्टिल कैन लुक फॉर जॉब्स ऑन लिंक्डइन एंड रेस्ट, एंड यू कैन स्टिल गो एंड गिव इंटरव्यूज एंड रेस्ट। जब आपको लगे कि ये ऑफर आपके लिए अच्छी है तो आप वो ऑफर सिलेक्ट कर लें। जब आप ग्रेजुएट करके आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी करूँ कौन सी ना करूँ, तो आई विल सजेस्ट कि आपको जहाँ से एक्सेप्टेंस, अगर आपको एक जगह से एक्सेप्टेंस मिली है ना और आपका दिल नहीं मान रहा उस जगह के लिए कि यार ये जगह सही नहीं है, मुझे नहीं करनी, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फॉर माई सेल्फ, मुझे मैं शायद वेट कर लूँ या कर लूँ, नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। आई पर्सनली थिंक कि इट्स बेटर कि आप फॉर सम रीजंस उसको ज्वाइन कर लें। इफ़ यू आर डेस्परेट टू, अगर आपका नहीं दिल चाह रहा तो ऑब्वियसली यू कैन स्टिल वेट। और आपको थोड़ा आइडिया इंटरव्यूज देने का भी बहुत एक एक्सपीरियंस होता है, और आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाए, यू शुड नो, यू लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग एन इंटरव्यू, तो वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए और आपको कहीं ऐसी जगह से एक्सेप्टेंस मिल गई है जहाँ से आपको लगता है कि आई डोंट वांट टू डू इट, दिस इज़ नॉट समथिंग आई इमेजिन्ड माई सेल्फ डूइंग, तो एटलीस्ट आप कर लो और उसके बाद कीप अप्लाइंग। अब बात ये है कि जब आप किसी भी जॉब पे जाते हो ना, स्पेशली विद इंजीनियरिंग एंड अकाउंट्स एंड मे बी कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड भी, मे बी सारी फील्ड्स, कि फर्स्ट दे हायर यू एज अ ट्रेनी, और वो 3 महीने होती है आपकी प्रोबेशन। और बेसिकली वो ज़रा सख्त पीरियड होता है, उसमें आप कोई ऑफ नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अगर आप उस प्रोबेशन के पीरियड के दौरान किसी और जॉब पे स्विच कर जाओ तो आपको फिर उस नई कंपनी में वो ट्रेनिंग और प्रोबेशन का पीरियड फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। कुछ लोग अब 3 महीने एक जगह प्रोबेशन कंप्लीट करके फिर वो कहीं नई जगह चले जाते हैं और फिर वहाँ पे आप एज अ प्रॉपर एम्प्लॉय फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन कुछ जगह जो है वो कुछ जगह नहीं, अगर आपकी प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुई हुई तो फिर आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है एज ए ट्रेनी। लेकिन अगर आपको कहीं अच्छी ऑफिस, अच्छे इंडस्ट्री या कहीं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से अपॉर्चुनिटी मिली है तो ऑब्वियसली इट्स वर्थ इट टू लीव इट एंड स्टार्ट इट फ्रॉम द स्टार्ट, इतना कोई मसला उस चीज़ में नहीं होता। लेकिन दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग समथिंग, कि आपका लुक फॉर जॉब्स जो कि आपके टाइटल के साथ जहाँ पे ट्रेनी लिखा हो, क्योंकि फर्स्ट दे ट्रेन, इसका मतलब यही होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऑब्वियसली कहते हैं कि एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए, 2 साल का चाहिए, लेकिन जब ट्रेनिंग का टाइटल लगा होगा वो जॉब बेसिकली फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है। उसमें वो आपको 3 महीने प्रोबेशन पे रखते हैं जो आपका बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड होता है, और उसमें आपकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब आपके वो 3 महीने पक हो जाते हैं तो उसके बाद वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, और फिर आपकी वो जॉब नॉर्मल हो जाती है और आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ आपको इंक्रीमेंट वगैरह भी मिल जाता है। Yep, so that's it. I hope this whole information helped. अगर किसी को नहीं पता, आई थिंक जो ग्रेजुएशन के पीरियड पे होते हैं वो खुद उनको सब कुछ इस सब बातों का पहले से पता होता है, और मेरे से शायद ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो, क्योंकि व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो आई एम वर्किंग रिमोटली, तो मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी लिटरली एक दिन बाद मिल गई थी। और मैं, और पता है क्या है मजे की बात, ये है कि विद एवरीवन थिंग्स जस्ट कम्स टू यू। ठीक है, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आई विल बी गेटिंग अ रिमोट जॉब, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आई नेवर थॉट दैट फॉर माई सेल्फ कि यार रिमोट जॉब, मुझे कभी लगता भी नहीं था कि मेरी फील्ड की कोई रिमोट जॉब हो भी सकती है। मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं लगा कि आई वुड बी वर्किंग रिमोटली, एंड आई नेवर मे बी वॉन्टेड दैट फॉर माई सेल्फ। तो पहले जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने कहा ओ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होगी, ये नहीं होगा। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी नो रबिया, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड यू शुड अवेल इट। और फिर मुझे भी लगा कि नहीं यार इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और मैंने तो जिस दिन ग्रेजुएट किया था उसके 2 दिन बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी हो गई थी, और आई स्टिल गॉट अ होल मंथ, क्योंकि मैं जुलाई में ग्रेजुएट हुई थी एंड माई जॉब स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त। तो तो एंड इट वाज अ मंथ ऑफ रिलीफ कि मुझे पता है मेरी जॉब है, एंड नाउ आई कैन हैव माई टाइम
अगस्त तक, और मैं वो अपना इंजॉय कर सकती हूँ फ्रेश ग्रेड एरा। अगर तो कुछ लोग, ऑब्वियसली सम पीपल हैव द प्रिविलेज टू गो टू ट्रिप्स, और उनके पास बहुत प्लान्ड होता है कि ओ वील डू अ ग्रैड पार्टी, ग्रैड ट्रिप, ये सब कुछ। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो मेरे लिए वो टाइम इतना कोई इंजॉयबल नहीं था। और मैं तो बल्कि वेट कर रही थी कि कब जॉब स्टार्ट होती है। और मैं सही बताऊँ, मेरे जितने भी दोस्त थे जिनकी जॉब 1 महीने या 2 महीने बाद स्टार्ट हुई है, दे वर लिटरली वेटिंग कि उनकी जॉब स्टार्ट हो जाए। तो इस वजह से हम सोचते हैं कि ओ हम आराम से पहले 1 महीना रेस्ट करेंगे। यू डोंट नीड दैट। आप ठीक हो जाते हो, और जितना टाइम इंटरव्यू और एक जॉब फाइनलाइज करने में लगता है ना, उतने में आपका रेस्ट हो जाता है। यू जस्ट वांट टू गो टू वर्क एंड स्टार्ट वर्किंग। और ऑब्वियसली प्रोबेशन का पीरियड इज़ अ बिट डिफिकल्ट। पहला महीना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देन यू विल गेट इन सिंक और इट वुड बी फाइन फॉर यू। तो फॉर मी दिस अपॉर्चुनिटी वाज बेटर। मुझे कुछ लोगों ने कहा नहीं पहले ऑफिस जॉब करो फिर ये करना, ये नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी बेहतर है, और मैंने अपने लिए ये ले ली, और आई एम स्टिल डूइंग दैट, और आई एम वेरी content and sane with that, and I really enjoy it, or I get to do so many things। जो ऑफिस जा रहे हैं दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद देयर जॉब्स। तो इट्स नॉट लाइक कि ये जॉब इससे बेहतर है, इट्स जस्ट लाइक कि यू अडेप्ट टू व्हाट्स गिवन टू यू, माय फेवरेट फ्रेज। तो आपको जो भी आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी लगती है, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन की, बेहतर पोस्ट की, बेहतर सैलरी पैकेज की, आप अपने लिए वो चूज़ करो। और वो जो भी है, रिमोट है या फिजिकल है, ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मेरी अगर फिजिकल जॉब भी होती तो मैंने फिर भी बोलना था कि आई एम एंजॉइंग इट। मैंने कभी भी नहीं सोचना था कि नहीं आई एम वेरी मिजरेबल, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो वट एवर इज द सिचुएशन फॉर यू, वट एवर इज द गिवन सिचुएशन, वट एवर लाइफ यू लिविंग, यू हैव टू ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। एंड यू हैव टू थिंक यार दिस इज द बेस्ट सिनेरियो। ऑब्वियसली थिंग कुड हैव गॉन बेटर, लेकिन आई डिड वट आई कुड हैव डन, और आगे से अल्लाह को मंजूर था कि मेरे लिए ये चीज़ ऐसे वर्कआउट करती। तो यू हैव टू काइंड ऑफ गिव टेल योर सेल्फ कि नहीं दिस इज अ गुड थिंग। और ऑब्वियसली आप एक जॉब पूरी ज़िंदगी नहीं करते, तो कीप अप्लाइंग, और यू कैन कीप चेंजिंग योर जॉब, और आप बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी पे जा सकते हो। आई डोंट नो इफ चेंजिंग योर जॉब इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग। मैं तो 1 साल से एक ही जॉब कर रही हूँ, और आई हैव नो प्लान्स टू अप्लाई एनीवेयर एल्स। आई एक्चुअली थिंक दैट आई शुड थिंक अबाउट मास्टर्स, क्योंकि मुझे वैसे ही पढ़ाई का शौक है। Obviously masters, especially MBA, do give you a professional growth, लेकिन मुझे उसके साथ साथ अपनी फील्ड को पढ़ने का भी शौक है। और अच्छा, एक और बात, ग्रेजुएशन के बाद यू विल रियलाइज कि एजुकेशन इज नॉट अ बर्डन, especially for me, especially for me, I die now to get educated। और वो टाइम पे मैं पैसे दे के पढ़ी थी, मैं अब मतलब कि आई नाउ स्ट्राइव टू गेट एजुकेटेड, टू गेट नॉलेज। और मुझे रियलाइज होता है कि यार आई वॉज पार्ट ऑफ अ क्लासरूम, जहाँ पे मेरी जो फील्ड है उसके बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कॉन्सेप्चुअल हो रही थी, थेरेटिकल हो रही थी, सब कुछ हो रही थी, और मैंने इस चीज़ की कदर नहीं की। मेरे लिए वो चीज़ अजाब थी, और नाउ आई एम गूगलिंग एंड यूट्यूबिंग ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स टू ग्रास्प। और अब आई रियली स्ट्राइव टू गेट एजुकेशन। तो अब मुझे इसलिए भी मास्टर्स करना है क्योंकि आई वांट टू मास्टर इन माय फील्ड एक्चुअली। तो आई थिंक कि आपको ना पढ़ाई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ग्रेजुएशन के बाद रियलाइज़ होती है कि यार इट्स नॉट दैट बर्डन, और इट्स एक्चुअली वेरी गुड। मे बी आप फिर से मास्टर्स करो तो आपके लिए फिर से वो चीज़ बर्डन बन जाए, लेकिन बात यही है कि जिस सिचुएशन में आप नहीं होते ना, फिर आपको वही अच्छी लगती है। लेकिन आई डिड गॉट अ लॉट ऑफ importance for education अब, और आई रियली ट्राई टू एजुकेट माई सेल्फ अ लॉट, क्योंकि इट्स सो ईजी to be up to date or to know everything when you are a part of a classroom or a part of a program जहाँ पे ऐसी डिस्कशन हो रही है, whether it's related to your field, whether it's not related to your field। और now जब आपका वो एक चीज़ बंद हो जाता है, आपका वो source of education and information, then you have to try to keep yourself updated। Obviously you can spend your time watching vlogs और ये सब कुछ, और बट यू कैन गो एंड क्लिक ऑन द बिजनेस आर्टिकल और द न्यूज़ जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड हो रही है, ताकि आप अपडेटेड रहो कि क्या हो रहा है। तो अब
इसलिए मैंने कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक डिसीजन ऑन योर ओन, क्योंकि आप हमेशा अपने लिए आसान रास्ता देखते हो और अब आपके सर पे कोई डंडा नहीं है कि यू हैव टू कीप अपडेटेड विद योर करियर की चीज़ें या जो भी बाहर चीज़ें हो रही हैं जो कि हैं। लेकिन यू मिस दैट थिंग कि जब आपको वो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही थी व्हेन यू वर नॉट इवन आस्किंग, एंड नाउ यू फील कि अब वो एक बैरियर आ गया है कि मुझे कोई बता नहीं रहा एंड आई हैव टू गो माई सेल्फ एंड लुक अप फॉर इट एंड एजुकेट माई सेल्फ। आई नीड टू गेट, मुझे अब कोई नहीं कहेगा कि तुम ये बुक लो या तुम ये बुक पढ़ो, मुझे लेकिन खुद जाके वो बुक लेनी है और पढ़नी है, क्योंकि आई वॉन्ट दैट नॉलेज फॉर माई सेल्फ टू स्टे अपडेटेड। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत रियलाइज होती हैं एंड आई थिंक दैट यू शुड कीप अप विद। मुझे लगता है कि सिंस आई एम वर्किंग रिमोटली टू, तो इस वजह से भी अगर आप शायद ऑफिस में हो तो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम नॉट। तो मैं अपने लिए शायद एक्स्ट्रा कॉन्शियस एफर्ट कर रही हूँ कि आई नो व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, शेयर्स, मार्केट शेयर्स, बॉन्ड्स, मतलब डेब्ट, सब कुछ। तो आई हैव, पहले क्लास में हम जाते थे तो किसी ना किसी को इन्फॉर्मेशन होती थी या सर को होती थी, तो दे वुड ऑलवेज ब्रिंग अप दैट टॉपिक एंड वी वुड नो कि हाउ इज द इकोनॉमी, हाउ इज द फाइनेंस सिचुएशन, how is the political situation in this company, yeah, what are the new things that are being added maybe internationally in our field. लेकिन now I have to do a conscious effort to know it कि अगर मुझे मुझसे कोई आके पूछ ले या मैंने कल को कहीं जाना है या इंटरव्यू कहीं और देना है तो आई वुड नो, वरना मतलब, तो यू नाउ यू हैव टू कीप मतलब एजुकेट योर सेल्फ विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट लेकिन अपने आप को खुद मोटिवेट करना ना बड़ा मुश्किल होता है। इवन विद दैट, जब आप बचपन में कुरान पढ़ते थे तो आपको कारी साहब पढ़ाने आते थे या आप मदरसा जाते थे या जो भी आपको पढ़ाने आता था, तो तब आप रेगुलरली कुरान पढ़ रहे थे क्योंकि आपको कोई पढ़ाने आ रहा था। लेकिन अब आपको खुद खोलना पड़ रहा है तो आप कभी कभी, मोस्टली नहीं पढ़ते, ठीक है ना, कभी कभी पढ़ते हो। और क्योंकि आपको खुद कभी कभी आपको चाहिए होता है कि कोई आपको वो सोर्स वो चीज़ बने, तो नाउ यू डोंट हैव द सोर्स एंड योर होल लाइफ एजुकेशनली कि योर होल लाइफ यूर स्ट्राइविंग के, यूर वेटिंग, नॉट स्ट्राइविंग लेकिन इम्पेशेंटली वेटिंग कि कब वो टाइम आएगा जब मैं अपनी मर्जी से वो चीज़ करूँगी, और जब वो टाइम आता है तो यू मिस दैट ऑल टाइम, क्योंकि तब आपको, यू हैव दिस रूटीन जो यू हैव टू फॉलो, ठीक है ना, जो आप जहाँ आपकी मर्जी नहीं थी लेकिन यू आर, तो आपको बाद में उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस पता लगती है। खैर, आई मेंशनड अबाउट जॉब, मैंने अब्रॉड की बात कर ली, मैंने मास्टर्स की बात कर ली। मैं क्योंकि मैंने मास्टर्स नहीं किया एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग मास्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान, तो जब मे बी मैं उस चीज़ में जाऊंगी तो मैं ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकूंगी कि व्हाट यू शुड डू, व्हाट शुड यू शुड नॉट। लेकिन या माई ओनली एडवाइस इज दैट कि इफ़ यू वांट टू डू मास्टर्स right after your graduation, to do it right after your graduation if you have the opportunity to do it. डोंट वेट कि यार चलो मैं 2 महीने जॉब कर लेती हूँ फिर कर लेती हूँ, इट वुड बी मेस्ड अप एंड इट वुड बी ओवरवेलमिंग। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि ओनली दोज पीपल आर अलाउड टू डू अ जॉब जो कि जिनको ज़रूरत है जॉब करने की। नो अगर आपका शौक है जॉब करने का या अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो डू दैट। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर हाल में मास्टर्स करना पड़ेगा इफ़ यू कान अफोर्ड इट, लेकिन यू, कुछ लोगों ने मास्टर्स करना भी होता है लेकिन उन्हें जॉब भी करनी होती है और उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि वो पहले क्या करें, वो पहले क्या चीज़ देखें या फिर वो कैसे, मतलब कि इट गेट्स ओवरवेलमिंग। तो मुझे लगता है कि आपको बस ये देखना है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और आपको अपने लिए स्टेप्स बनाने हैं कि अच्छा पहले मैंने ये देखना है, फिर मैंने ये देखना है, फिर मैंने ये देखना है, एंड देन दैट वुड लीड टू दैट। सिमिलरली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय पॉडकास्ट, तो मैं एकदम से देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन माय माइंड, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया रबिया फर्स्ट रिसर्च अबाउट इट, मैंने फिर एक जगह नोट डाउन कर लिया कि how I'll record it, where I'll upload it, and then I searched for that और फिर next चीज़ें आ गई। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एंड यू नीड टू फिगर आउट कि आपके इनिशियल स्टेप्स क्या हैं, और वो आपको इस तरह पता लगेगा जब आप फिगर आउट करोगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको पता है लेकिन यू जस्ट डोंट डिडंट हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ अबाउट इट। ऑलराइट,
और व्हाट आई वांट टू से, हाँ मैंने दोस्ती का बता दिया कि विद योर फ्रेंड्स इट्स लिटरली द सेम, यू हैव द सेम कनेक्शन। जो आपके दोस्त रहने हैं वो आपके दोस्त पूरी ज़िंदगी रहेंगे। अगेन मेरे कुछ यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद लोगों से दोस्ती हुई है और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे। तो इफ़ इट वाज मेंट टू हैपन तो इट हैपेंड, एंड वी आर वेरी क्लोज इवन दो आई एम नॉट मीटिंग देम एवरी सिंगल डे, या आई मीट देम मे बी वंस अ मंथ, मे बी वंस इन 2 month और 3 month, लेकिन आई एम स्टिल वेरी सॉलिड विद देम। जिन जो मेरी कुछ लोग थे जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ हर रोज़ थे, लेकिन उनसे मेरा पिछले 6 महीने से कांटेक्ट ही नहीं हुआ। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड यू। ऑब्वियसली आप अपनी तरफ से एफर्ट करो, अगला बंदा ना करे तो मतलब बैक आउट मे बी, और योर हार्ट विल ग्रो आउट ऑफ इट, ट्रस्ट मी इट विल। आपको यू वॉन्ट क्रेव योर होल लाइफ टू गो इन सिट इन कैंपस, आप बस 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद आप कहोगे क्या यार मैं कैंपस जाके क्या बैठना है। तो इट वुड बी फाइन, यू वॉन्ट क्रेव। और पहले मुझे लगता है कि पहले सेमेस्टर में ये होगा कि आप देख रहे होगे कि ओ बाकी सारे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं मैं नहीं जा रहा, लेकिन उसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिटरली आपको नहीं पड़ेगा, और आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करोगे जो कि आपकी करंटली है और आपको करनी भी चाहिए। अच्छा, a lot of people want to do business right after, या उनके ऑलरेडी फैमिली का बिजनेस इस्टेब्लिश होता है और वो उसको ज्वाइन इन कर लेते हैं। आई थिंक इफ इट्स दैट देन दैट्स ग्रेट, यू शुड डू दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले जॉब करनी है फिर मैं उस बिज़नेस में जाऊँगा, अगर आपकी वो बिज़नेस आपके बगैर चल सकता है तो फिर आप कर लो पहले जॉब। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ आर थिंग्स गोइंग। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर योरसेल्फ, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू एंड व्हाट शुड बी डन फर्स्ट। एक बार वो स्टेप हो जाए फिर अगले स्टेप पे जाना। ये मैं हर किसी को बोलती हूँ कि यार मतलब डू वन बाय वन, थिंक, पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है, फिर देखो कि मैंने उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। जैसे मुझे जॉब चाहिए तो मैं लिंक्डइन पे देखूंगी, मैं किसी से पूछूंगी, मैं अपने बाबा को बताऊंगी कि मुझे जॉब करनी है, तो इफ़ यू नो समवन तो लेट मी नो। मैं एक बात बताऊं, देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग पीपल। ये सिफारिश नहीं होती क्योंकि ना, ओके, a lot of times when companies want to hire someone they won't put it on LinkedIn or Facebook or newspaper or anywhere else, they'll ask their employees कि हम हायर करना चाहते हैं, अगर आपके जहन में कोई बंदा है तो आप बता दें, क्योंकि अब वो ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है ना। और अगर आप, हो सकता है उनमें से कोई एम्प्लॉय आपका दोस्त हो, आपका जानने वाला हो, आपके बाबा के जानने वाला हो, तो यू हैव टू बी वोकल कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, ताकि उनके जहन में आप आओ और वो आपको रेफर कर दें, ठीक है। तो डोंट बी शाय इन आस्किंग पीपल के ओ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, या फिर मतलब कि नॉट से कि मैं मुझे जॉब चाहिए मुझे प्लीज़ जॉब ढूंढ दो, लेकिन आप उनको बता सकते हो कि आई एम करंटली लुकिंग फॉर अ जॉब, और एंड दे कैन अप्रोच यू। यू नीड टू बी वोकल अबाउट इट। और मैंने ये ना एक पॉडकास्ट में भी सुना था कि आपको जो चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट से इट आउट अलाउड, क्योंकि अनलेस इट वॉन्ट हैपन, जब तक आप उस चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे। एंड इस मौके पे मैं भी कहना चाहती हूँ, आई रियली वांट टू डू मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड पैनल स्पीकिंग। मुझे लगता है कि अभी मे बी आई एम नॉट दैट वेल वट एवर टू डू दैट, लेकिन आई वॉन्ट टू डू दैट इन फ्यूचर, तो आई एम पुटिंग इट आउट देयर कि आई वॉन्ट टू रियली डू इट। आई, ये मैं वैसे कहीं और कभी और बात करूँगी, दिस इज़ अनदर टॉपिक, दिस एपिसोड इज़ नॉट अबाउट दैट। लेकिन खैर, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, तो यू स्टूडेंट शाई अवे इन टेलिंग पीपल कि या आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स। तो अगर आपके जहन में कुछ हो, तो अगर आपको कुछ मिले, कोई अपॉर्चुनिटी नजर आए, तो ज़रूर मुझे फॉरवर्ड करना। ये नहीं कहना कि प्लीज़ मुझे अपने ऑफिस में जॉब दे दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं। आप जब उसको आज, यू जस्ट से कि I'm looking for jobs. So if you find any opportunity to really let me know. तो there is no harm in doing that. अगर आपके इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ऑब्वियसली कभी आपके फैमिली के होते हैं या आपके मामू चाचू के होते हैं, किसी के भी होते हैं, तो डोंट शाई अवे जस्ट टू लेट देम नो, इट्स ओके। इसमें इतनी कोई बुरी बात नहीं है। और अगेन जब ऑफ कुछ बहुत से ऑफिस ऐसे हैं जो जब हायर करते हैं तो वो ऑफिशियली पोस्ट भी नहीं करते, और ना ही इंटर मतलब कि लिंक्डइन वगैरह भी लगाते हैं, वो खुद ही अपने एम्प्लॉय से पूछ लेते हैं सबसे पहले, और अगर उनको कोई मिल जाए तो यू वुड नेवर नो कि उस कंपनी में हायरिंग हुई है, हो भी गई है, और दे नेवर पोस्टेड ऑन लिंक्डइन।
तो दैट्स द थिंग, इस वजह से बी वोकल अबाउट इट. व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट आई वांटेड टू से? मैंने ये भी बात कर ली, मैंने अब्रॉड की भी बात कर ली. और या इफ यू वांट टू डू बिजनेस और आपको लगता है कि वो है तो कर लो. यू जस्ट नीड, अगेन यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई वॉट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. हाँ, दिस माइट बी द लास्ट लास्ट पॉइंट मे बी, कि मशवरे देने के लिए बहुत लोग हैं. हर किसी के पास अपना ओपिनियन होगा जो कि उनके अपने एक्सपीरियंस से बेस्ड होगा. ठीक है, आपको हर किसी का मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी एक कान से एक चीज़ सुनो और दूसरे कान से निकाल दो. लोगों के पास कहने के लिए बहुत चीज़ें हैं कि ये कर लो, यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करते यार, आप ये क्यों नहीं करते यार, आप इस मुल्क में क्यों नहीं अप्लाई करते, इनकी तो बहुत अच्छी है. डू वट सूट्स यू. ठीक है, यू नो इनफ. जो आपकी जेन्युइनली मदद करना चाहेगा ना, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और वो फिर आपसे और क्वेश्चंस भी पूछेगा, या दे विल ट्राई टू आस्क के यार अपनी सीवी भेज दो, आई लुक अप फॉर इट. या फिर आपको एक्चुअली लिंक भेजेगा कि यार देखो यहाँ पे स्कॉलरशिप आई हुई है, गो चेक इट आउट. लोगों के पास, लोगों ने ना इर्द गिर्द से चीज़ें सुनी हुई हैं और लोग आपको बता रहे हैं. या फिर अपना, अब जब मैं, और इससे एक और पॉइंट भी निकलता है कि जब मैं भी पढ़ रही थी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो हमें हर कोई टीचर आके कहता था कि आपकी तो जॉब है ही नहीं, इसकी तो जॉब है ही नहीं, पता नहीं कैसे मिलेगी जॉब, मतलब है ही नहीं मार्केट में जॉब. एंड अगेन मैंने ये पिछले एपिसोड में भी बोला था, इस एपिसोड में बोल रही हूँ, मेरी क्लास में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी जॉब ना हो. अगर किसी की नहीं है तो इट्स देम नॉट वांटिंग टू डू इट, या दे कीप रिजेक्टिंग जॉब्स. ऐसा नहीं है कि वो जॉब ढूंढी जा रहे हैं पिछले साल से और उनको अभी तक जॉब नहीं मिली या उनको रिजेक्शन मिली जा रही है. ऐसा नहीं है. तो आई होप वट एवर फील्ड यू आर डूइंग इट वर्क्स आउट फॉर यू टू. और आई थिंक के दैट वुड बी अनदर टॉपिक के अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि आई डिड फील्ड सिलेक्शन का, करियर का, लेकिन आई डेंट टच द टॉपिक कि अगर आप उस चीज़ में ग्रेजुएट कर लो और आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने आई थिंक आई डिड टच दैट टॉपिक, यू कैन चेंज योर फील्ड or do something like that. To make sure you're checking that episode out, क्योंकि I did talk about it, लेकिन I think yeah, I'll make another full fledged episode about it. लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग में भी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार इसमें जॉब नहीं है, तो डोंट शाई अवे टू डू एमबीए या वट एवर यू थिंक इज you should do next and have demand. टीचिंग की जॉब्स आर वेरी गुड जॉब. अगेन मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था, ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि टीचिंग की जॉब तो आराम से मिल जाती है, किसी को भी मिल जाती है. हर किसी को नहीं मिलती, हर कोई टीचर भी नहीं बन सकता. तो इफ़ यू आर गेटिंग वन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब एंड इट्स अ वेरी गुड एरिया टू वर्क इन, इफ़ यू वांट टू डू दैट. कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मास्टर्स आगे करना होता है, तो उनको सिर्फ, और उनको यही उनका होता है कि मैंने एक साल बाद मास्टर्स करना है, तो उनको कोई ऐसी जॉब चाहिए होती है क्योंकि जस्ट वांट टू अर्न आउट ऑफ इट एंड स्टे बिजी. तो इस सिलसिले में अगर कुछ लोगों में अगर आपको टीचिंग की जॉब मिल रही है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब फॉर दैट. तो अगेन इट्स अप टू यू कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और आपको क्या करना है और आपको वो किस तरह करना है और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए. इफ़ यू नीड हेल्प, तो क्योंकि मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स को ग्रेजुएशन के बाद एडवाइस दी हुई है, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि इट वर्क, क्योंकि वर्क फ्रॉम देम और इट काम देम डाउन. सो इफ़ यू are not satisfied with whatever I said for the past 1.5 hour, no, 1 hour and 13 minutes, so you can surely come to me on DM and we can discuss that, and maybe I can give you a बेहतर मशवरा. और मे बी ऑब्वियसली मैं आपकी सिचुएशन नहीं जानती जो भी सुन रहे हैं, और मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ. तो मे बी अगर मैं आपकी सिचुएशन सुनूँ तो आपको मैं और कोई आइडिया दूँ. जैसे एक मुझे एक लड़की ने मैसेज किया कि वो, मैं ट्रेन इंजीनियरिंग कर रही हूँ और मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं आगे क्या करूँ. तो मुझे पता था, तो मैंने उसको उसी हिसाब से मशवरा दे दिया. तो इस वजह से मे बी आई डोंट नो योर सिचुएशन, एंड इफ़ आई विल नो आई विल गिव अ बेटर एडवाइस. तो या आई एम अवेलेबल इन DM for in the brown girl rants, at the brown girl rants Instagram, or my Twitter account, my Twitter DM. Or what else I wanted to say? Maybe we'll take a break and come back. Okay, now I'm reading in my friend's advices. This one is from Maheen. She's maybe telling her insecurity. तो मैं पहले उसकी insecurity बताती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि उसका क्या हल है या क्या था. She said कि I was scared कि मुझे तुम लोगों से मिलना नहीं जाएगा, और basically
मैंने पहले भी एड्रेस किया कि आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाओगे, लेकिन यू विल रियलाइज कि यू आर फाइन, यू वोंट डाई विदाउट योर फ्रेंड्स एंड यू विल देन लिव लाइक दैट। आपका फिर टेक्स्ट पे ज़्यादा हो जाएगा, ये जो भी हो जाएगा, लेकिन आपको फिर उस तरह मज़ा आएगा और इट्स परफेक्टली फाइन। You will adapt to that situation, and obviously you might not enjoy with them every single day, but they're still with you and you can meet them whenever you want to, or it would be fine। और इस तरह नहीं होगा, your heart will grow out of it। फिर आप शायद कहो कि नहीं सही है, बस एक महीने में एक बार मिल लिया, बस सही है, काफ़ी है। Okay, next she said, plus I was scared to grow up or low-key scared about interviews. Yeah, interviews are very scary. um I did not have to give more than one, तो इस वजह से मुझे लगता है कि again I think it's a, मतलब कि I do accept the fact कि it's a privilege for me that I have to work remotely, और मेरी पहली opportunity ये थी, और it happened to me real quick। और मेरे कुछ लोगों को बहुत severe interviews देने पड़े, कुछ दोस्तों को, और I know it's very hard, और maybe I won't be able to relate to that, लेकिन I acknowledge that it's very hard, and the fact that I am privileged in that case। अच्छा, नेक्स्ट शी वाज सेड कि आई वाज आल्सो स्केर्ड कि अब आंटीज मुझे दूसरी नज़र से देखेंगी। सेम सेम। मुझे लगता था कि जब मैं ग्रेजुएट होंगी ना तो सब ने कहना है कि बस ये तो वेली बैठी है, इसकी शादी कराओ और मेरी तो फौरन हो जानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अच्छी बात है ऐसा नहीं हुआ, और आगे मुझे लग भी नहीं रहा कि कुछ अरसे तक ऐसा होगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ लोग के अब इट गेट्स वेरी अनोइंग एंड आई स्टिल, जब भी कोई फैमिली इवेंट आता है ना, मुझे जाना ही नहीं है उस पे, क्योंकि एक बार आप बोल दो ना कि यार आई ग्रेजुएटेड नाउ आई एम वर्किंग, शादी कराओ शादी कराओ शादी कराओ, तो आपको वो सब कुछ नहीं सुनना। लेकिन आई एम हैप्पी द फैक्ट कि माई पेरेंट्स डोंट हैव दैट मेंटेलिटी, और तो इस वजह से इट्स फाइन और आई एम हैप्पी। लेकिन मुझे भी ये बहुत डर था, मुझे बस लगता था कि बस ग्रेजुएशन के बाद सबको लगेगा कि बस ये फारिग बैठी है, अब ऐसा होना शुरू, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट एडवाइसेस आर फ्रॉम सादिया, और शी सेड के डू टॉक अबाउट के उस फेज में आपको समझ नहीं आ रहा होता कि करियर के लिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे हम थे कि अकाउंटिंग। या आई टॉक्ट अबाउट करियर के आपको क्या स्टेप्स करने चाहिए, और शी सेड के मास्टर्स करना है तो फॉरेन एडमिशन ले लो इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल। तो वी टॉक्ड अबाउट दैट, येस, इफ़ यू वांट टू डू मास्टर्स और यू वांट टू गो अब्रॉड तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। उसके मतलब कि फ़ॉरेन ही, क्योंकि एक बार आप जॉब में इन्वॉल्व हो जाते हो तो यू आर इन दैट जॉब, तो आपको फिर 1-2 महीना लगते हैं उस जॉब में सेटल होने के लिए कि आप कुछ दूसरी चीज़ सोच सको। और स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग तो प्रोबेशन पीरियड में तो टाइट होता स्केड्यूल। एंड शी सेड कि ये बात कि आप अपने फ्रेंड्स की लग जाती साथ जॉब तो आपकी नहीं लग रही होती तो वो एक अलग डिप्रेशन होता। या वी टॉक्ड अबाउट दैट टू। अगर आपके फ्रेंड्स की लग रही है और आपकी नहीं लग रही, डोंट स्टे डिप्रेस्ड। एक तो आप अप्लाई शुरू से करना शुरू कर दो। बहुत लोग होते हैं जो अप्लाई नहीं करते और बाद में रियलाइज होता है। अगेन मैंने उसमें बहुत डिटेल में बात की है, यू शुडेंट बी डिप्रेस्ड, क्योंकि आपको भी मिल जाएगी। और मेरा एक फ्रेंड था जिसकी नहीं लग रही थी एंड ही वाज वेरी डिप्रेस्ड कि लग नहीं रही लग नहीं रही, उसकी लग गई एंड नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। तो लग जाएगी। अगर आपके दोस्तों की लग गई है जो आपकी सिमिलर फील्ड में है तो इंशाल्लाह आपकी भी लग जाएगी जॉब। जॉब, ठीक है। बट anyways, moving forward, so don't be depressed, or think of that time as a bonus time that you're getting to enjoy। तो और अगेन जो भी मिल रहा है ना, फिर उस टाइम फिर ना शुक्री ना करें उस चीज़ की कि रिजेक्ट करते जाएं कि मुझे कोई बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस जो भी अभी इनिशियली अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें चले जाएं, और फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वहीं से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो नेक्स्ट देखना शुरू कर दें, ताकि नो, ताकि एक चीज़ सिक्योर है, लेकिन जहाँ नेक्स्ट लगती है तो मैं वहाँ नेक्स्ट पे चल रहा हूँ, ठीक है। सॉरी। ओके, व्हाट शी सेड, ओके, आपको फील हो, हाँ, कि आप पीछे रह गए हो, और जस्ट स्टे मोटिवेटेड, और इस बात पे बस पूरा यकीन रखो कि आपका नसीब आपसे कोई नहीं छीन सकता। देयर इज खैर, ये मैंने क्या बोला, देयर इज खैर इन एवरी डिले। उस वक्त फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं लगता, बाद में यू रियलाइज के बाद में यू रियलाइज
तो बस मायूस नहीं होना। ओके, हाँ, एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड। मेरी रिमोट जॉब है, उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार कैसे होगा, लेकिन नाउ आई थिंक आई इट वाज मेंट टू हैपन। जिस कंपनी में जॉब है, मेरे तीन दोस्त एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, और इट वाज मेंट टू हैपन दैट वे फॉर देम एंड दे एंजॉय अ लॉट। मेरी एक दोस्त की कहीं और जॉब है, दैट वाज मेंट टू हैपन। एक मेरी दोस्त मास्टर्स कर रही है, दो तीन बल्कि मास्टर्स कर रही है, और दैट वाज मेंट टू बी फॉर देम। तो द थिंग इज दैट कि इवन दो यू ऑल फ्रेंड ग्रुप या सारे आर ग्रेजुएटेड और आर फ्रॉम द सेम फील्ड, लेकिन what would work out for one person, it's not important कि दूसरे इंसान के लिए भी वही चीज़ वर्कआउट करे या उसकी अप्रोच भी वही हो। अगर कोई आपका दोस्त मास्टर्स करना चाहता है तो आपको उसको नहीं बताना चाहिए कि यार नहीं तुम जॉब करो, रहने दो मास्टर्स, कुछ नहीं रखा। अगर कोई जॉब करना चाहता है तो आपको उसको नहीं कहना चाहिए कि यार नहीं तुम मास्टर्स करो, जॉब मिस कराओ, बाद में जॉब करेंगे। जिसकी जो अप्रोच है उसको वो करने दो। और अगेन, आपको दूसरे का मशवरा एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। जो आपको सूट करे, जो आपकी उस वक्त कंडीशन है, आपको इजी लग रहा है, वो करो, ठीक है। दूसरों के पास बहुत मशवरे हैं देने के लिए, यहाँ अप्लाई कर दो, ये कर दो। और स्पेशली वो ज्यादा वो लोग होते हैं जो आपकी फील्ड्स में होते भी नहीं है, जिन्होंने इधर उधर से बातें सुनी होती हैं, ट्विटर पे देखा होता है या कहीं फेसबुक पे देखा होता है कि ये हो रहा है, तो आपको कह देते हैं कि यार आपको तो पता है दुबई में कितनी जॉब्स हैं, दुबई क्यों नहीं अप्लाई करते। तो लिंक भेजो ना भाई, जो जिसको आपका ख्याल होगा ना वो आपको पूरी एफर्ट करेगा, या वो आपसे जॉब का मामला होगा तो वो आपसे कहेगा कि यार वो उसको अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आई तो आपको सेंड करेगा लिंक कि चेक इट आउट। हवा में बातें नहीं करेगा। और अगर कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जो भी है, तो दे विल सेंड यू द लिंक ऑफ इट, दे विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट ऑफ इट कि गो चेक दिस अपॉर्चुनिटी आउट। वरना हवा में जो बातें करे, इसका मतलब यही है कि बस एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। डोंट स्ट्रेस आउट फॉर दैट। अपना जब आपके अपने जहन में फिक्स होगा ना कि दिस आर द स्टेप्स, मैं ये मेरी डेस्टिनेशन है और दीज आर द स्टेप्स दैट आई हैव टू फॉलो टू अचीव दैट डेस्टिनी, तो फिर कोई और आके आपको कुछ भी किया, आपका डिसीजन नहीं चेंज होना चाहिए, और आप अंदर से सेटिस्फाइड हो गए क्योंकि यू नो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट्स योर वे, व्हाट यू हैव टू डू टू गेट देयर, ठीक है। तो इस वजह से डोंट लिसन टू एवरी सिंगल पर्सन, एंड वील रिपीट द टिप्स। नंबर वन टिप इज दैट के whatever the time is coming is good, and you have to tell yourself कि whatever the time coming is good। और जब आप उस टाइम में चले जाओ तो आप बताओ कि नहीं, इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग टाइम, इट्स वेरी पीसफुल, ये हो रहा है वो हो रहा है। तुम ट्राई टू मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड ट्राई टू बी हैप्पी। और आपकी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है, लेकिन यू कैन स्टिल गो बैक टू योर यूनिवर्सिटी एंड स्पेंड अ डे देयर इफ दैट व्हाट यू वांट। यू कैन स्टिल गो हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, कोई आपको किसी चीज़ से नहीं रोक रहा। सेकेंडली, एक टाइम पे एक चीज सोचनी है, डोंट मेक इट ओवरवेलमिंग फॉर योर सेल्फ। अगर आपने बाहर जाना है तो उसका सोचें। अगर आपने पहले सबसे पहले तो अपना एग्जाम क्लियर करें सबसे पहले, ठीक है। और मैं बहुत मेरे ना बहुत से लोग जो है ना वो एग्जाम से पहले अपनी जॉब्स वगैरह देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आई टोल्ड माई सेल्फ, रबिया पहले एग्जाम दे दो, तैयारी है नहीं तुम्हारी, अगली बातें तुम सोच, पहले पास तो हो लो। तो फिर पहले एग्जाम्स दो, उसके बाद जॉब या जो भी करना है वो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि टेक वन स्टेप एट वन टाइम, और फिगर आउट के व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, फिर फिगर आउट के हाउ यू गोना अचीव दैट थिंग, एंड देन फॉलो दैट स्टेप बाय स्टेप। मेरी एक दोस्त थी और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, और शी डीएमड मी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आई फिगर्ड दैट आउट फॉर हर कि यार पहले तुम ये करो, फिर तुम ये करो, फिर तुम ये करो। तो अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा ना, तो वेंट इट आउट टू समवन और टू मी, एंड मे बी वी कैन फिगर आउट के हाउ इट इट मतलब हाउ वी कैन मेक इट हैपन। What's the next thing? Next thing is that के whatever friendship or everything जो you have that time, enjoy that, but it will grow out and it would happen very naturally। और आपकी कोई बिटर फीलिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा कि यार क्या, हाँ वो बड़ा फजूल टाइम था, ये नहीं होगा। यू विल एंजॉय दैट टाइम, लेकिन आप ऐसा नहीं होगा कि यू आर डाइंग टू गो बैक और यू वांट टू गो बैक। तो इस वजह से योर हार्ट विल ग्रो आउट ऑफ थिंग्स नेचुरली, बी इट फ्रेंडशिप्स जो कि बाद में नहीं चलती, बी इट द प्लेस, बी इट दैट रूटीन, योर हार्ट विल ग्रो आउट ऑफ इट एंड वी अडेप्ट टू व्हाट्स गिवन, ठीक है।
Number third thing is that के don't take सबकी advices जिस पे मैंने अभी बात की है. और yeah, I think I talked a lot, और I think I talked everything and anything and everything. और मुझे realize भी नहीं हुआ कि मतलब मुझे बात करते हुए इतना अरसा हो गया है. It's a 1 hour 24 episode, तो I hope I covered a lot of things. मुझे लगता है मैंने बीच में अपनी बहुत सी कहानियां शुरू कर दी, लेकिन I hope that was entertaining for you. I had a lot of fun recording this podcast. I was about to say shooting this podcast. If you are listening to it, so I urge you to please मेरे लिए मेरे लिए please मेरे लिए दुआ करें. I really need your prayers right now. There is something very important happening in my life, और इट रियली आप दुआ करें कि वो हो जाए चीज़, ठीक है. तो प्लीज़ प्रे फॉर मी. आई प्रॉमिस के वंस एनीथिंग हैपन्स आई ऑब्वियसली लेट यू ऑल नो. और मैंने पहले भी दुआ का कहा था, तो इस वजह से प्लीज़ इफ़ यू आर लिसनिंग टू इट प्लीज़ प्रे फॉर मी. आई एम वेरी नर्वस, लेकिन आई वांट दैट थिंग टू हैपन, लेकिन आई कांट रिवील राइट नाउ क्योंकि आई डोंट वांट टू जिंक्स इट. इस वजह से बट यू विल नो इन अ मैटर ऑफ डेज. तो इस वजह से प्लीज़ प्लीज़ प्रे फॉर मी कि आई कुड टेल यू गाइज दैट थिंग हैप्पीली एंड नॉट sadly. तो इस वजह से प्लीज़ प्रे फॉर मी. आई रियली वांट योर प्रेयर्स, और आई होप थिंग्स वर्क आउट फॉर मी. और या आई थिंक दैट्स इट फॉर द एपिसोड. इफ़ आई मिस्ड एनी पॉइंट तो प्लीज़ लेट मी नो. मतलब हाँ, लेकिन व्हाट यू विल डू आफ्टर लेटिंग मी नो. अब तो मैं ये एपिसोड अगले साल ही बनाऊंगी फिर से, लेकिन शायद मुझे फिर उस टाइम और कुछ हो जाए, क्योंकि वो विद टाइम यू लिव एंड यू लर्न. तो अगले साल की एपिसोड इससे ज़्यादा अच्छी होगी. तो make sure you are subscribing to the podcast platform wherever you are listening to it from. Make sure you're following me on Instagram and on Twitter. I post a lot on Twitter. I post a lot on Instagram and I tweet a lot on Twitter. And it's very entertaining. So be mutuals with me. Or yeah, that's it. Take care. Have a fun week. Yeah, goodbye. I'll see you guys with the next episode. If you guys don't know, I June have started, and it's June is my month. Okay, so maybe next two episode would be birthday theme. क्योंकि my birthday is coming up, and I'm not really excited for that, लेकिन I'm trying to make it more exciting and happening for myself. तो इस वजह से अगले दो maybe next episode would be about, क्योंकि I'm turning 23, तो it would be about के the 23 things I learned in my life, or I start need to start thinking about it क्योंकि I can't come up with a single thing. तो और उससे next मेरे ख्याल से it would be about how my birthday went and all of that. Yeah, how I handle with the birthday anxiety or depression, if that's a term. I need to look up for that too. लेकिन तो make sure you're looking forward to those episodes too, or I'll keep the episodes coming in. So thank you for your support, and thank you so much for coming and DMing me and telling me how much you love the episode. Someone DM'd me like 2 days back, and she wrote a whole note for me, and she told me that I'm an inspiration for her. Whenever someone tells me that I'm an inspiration for them, तो तब मुझे लगता है कि यार आई मेड इट इन लाइफ. मतलब कि एट दिस एज आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर समवन, यार समवन इज want to be like me. So I think that's the biggest achievement I could ever have in my life, and it makes me so happy. And I hope I stay that for you, and I hope I am so happy that I could be that for you. So thank you so much for giving me an opportunity for that. Thank you so much for tuning in. I love you all so much, and I'll see you guys next week, and take care. Bye.